આજનો કાર્યક્રમ અવેરનેસ સેશન ઓન અનબ્લોક બિઝનેસ વિથ હેપીનેસ. આ પ્રોગ્રામ મુખ્યત્વે તો આજના સિનારીઓ માટે એકદમ અનુરૂપ છે, કેમ કે આજે બિઝનેસ સિનારીઓ બહુ લ્યુસિડ છે. એ લ્યુસિડ સિનારીઓની અંદર બિઝનેસ તો છે પણ હેપીનેસ થોડી ઓછી છે, બિકોઝ કદાચ ઇન્ટેન્સ કોમ્પિટિશન અને ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય કે આપણી ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, હાલમાં આ એક બહુ મોટો ક્વેશ્ચન માર્ક્સ છે. અને એને માટે આપણે આજના મુખ્ય વક્તા છે મિસ્ટર જસ્ટવિન સિંઘ. એ બરોડાથી આવે છે. એ હેપીનેસ ફાઉન્ડેશનના ચેરમેન છે. જોડે જોડે આપણા પ્રેસિડેન્ટ શ્રી વિજયભાઈ મેવાવાલા, કે જે બોલ્ડ એન્ડ બ્યુટીફુલ છે, અને એમને બોલ્ડ એન્ડ બ્યુટીફુલ પેલી આપણી સિરિયલને યાદ નહીં કરીએ, પણ ખરેખર વિજયભાઈ બોલ્ડ એટલા માટે છે કે એમની નિખાલસતા અને એ જે વિચારે છે તે બોલે છે, એટલે બોલ્ડનેસ પણ છે ને બ્યુટીફુલ પણ છે, હેન્ડસમ પણ છે, વિચારીને બોલે છે. એટલે એમના નેચા હેઠળ આ પ્રોગ્રામ આપણે કરીએ છીએ. વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસી, કે જે કદાચ એમને સાંભળવાના વધારે ગમે અને એકદમ લ્યુસિડ એમનો વક્તવ્ય હોય, સાંભળતા જ રહીએ એવું લાગે, એવા આપણા નિખિલભાઈ મદ્રાસી. ટ્રેઝરર શ્રી મૃણાલભાઈ શુક્લા, એ પણ એક સારા વક્તા છે અને સારી રીતે બધા લોકોને કન્વિન્સ કરી જાણે છે. આપણા આજના મુખ્ય વક્તા એમ કહેતા હતા આજે બપોરે કે તમારી પાસે આટલું બધું સાધન સંપન્ન તમારા વક્તાઓ છે, તમે મને શું કામ બોલાવ્યો? તો એમને આપણે એને સાંભળીશું તો આપણે કમ્પેર કરી શકીશું કે કોણ બેટર છે. અને ગ્રુપ ચેરમેન શ્રી સંજયભાઈ પંજાબી, આ આખો પ્રોગ્રામ જે છે તે એમણે કન્સ્યુમ કરેલો છે. બહુ મજાની વાત એ છે કે સંજયભાઈ ગયા હતા હમણાં ગયા મહિને કાશ્મીર, અને કાશ્મીરની અંદર જસવિંદર સિંઘ એમને મળી ગયા અને એ એક ઓળખાણ થઈ, અને એ ઓળખાણ આજે અહીંયા સુધી આવી ગયા છે. અને એને માટે હવે આજના કાર્યક્રમ માટે હું ખાસ આપણા પ્રેસિડેન્ટ શ્રી વિજયભાઈ મેવાલાને આમંત્રણ આપું છું. વિજયભાઈ મેવાલા. શૈલેષભાઈ બહુ બધું બોલી ગયા, અને બોર્ડ પર એમના લખ્યું છે જસ્ટ વિન, કે ને જસ્ટ વિન, તરત જીતવું છે એમ. નહીં જસબી નહીં જસપ્રીત, બસ એમનું નામ જસ્ટ વિન. અને હેપીનેસમાં માનવાવાળા માણસ છે. આપનું સેશન પણ આજે અવેરનેસ સેશન અંદર અનલોક બિઝનેસ વિથ હેપીનેસ એ ટોપિક પર છે. એટલે આપણે જનરલી જો સવારનો દિવસ સારો જતો હોય, આપણો સ્ટાર્ટિંગ ઉઠતાની સાથમાં, અને હેપી હોય તો આખો દિવસ સારો જ જતો હોય છે. સવારે જો ઘરેથી નીકળતા જ ચામાં ખાંડ વધુ ઓછું પડી જાય અને કચકચ થઈ જાય તો આખો દિવસ મોડો જતો હોય. એટલે હેપી રહો અને આખો દિવસ સ્ટ્રેસ વિધાઉટ સ્ટ્રેસ કામ કરો તો એનો લાભ તમને બિઝનેસમાં બી થતો હોય છે, જનરલ લાઈફમાં પણ થતો હોય છે. અને રાત્રે પાછા ઘેર આવો એટલા મસ્ત ખુશ થઈને તો ફેમિલી સાથે બી તમે સારો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરી શકો છો. એમનું કહેવું એમ જ છે કે બસ ખુશ રહો, મસ્ત રહો ઓર મોજ મેં રહો. કિરણભાઈ કે તેમ આજના વક્તા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હેપીનેસ સંસ્થાપક શ્રી જસ્ટવિન સિંઘ, ચેમ્બરના મારા સાથી મિત્ર ઉપપ્રમુખ શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસી, તત્કાલિક ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ નથી હાજર રમેશભાઈ, સેક્રેટરી શ્રી નીરવભાઈ પણ નથી આવ્યા, ખજાનચી શ્રી મૃણાલભાઈ શુક્લ તેમજ ઉપસ્થિત ઉદ્યોગ સાહસિકો, અને અમારા ગ્રુપ ચેરમેન શ્રી શૈલેષભાઈ, ગ્રુપ ચેરમેન શ્રી સંજયભાઈ પંજાબી, તેમજ સર્વ ઉપસ્થિત સાહસિકો, સન્નારીઓ અને
ડિગ્નિટરીઝ ઓન ધ સ્ટેજ એન્ડ ઓફ ધ સ્ટેજ. હેપીનેસ જીવનમાં ઘણીવાર નાની નાની વાતોથી પણ મળતી હોય છે, અને ત્યારબાદ કંઈક કામ કરવામાં આવે તો તે વધુ ઉત્સાહથી સાથે વ્યક્તિ કરી શકે છે. કેટલાક રિસર્ચ અનુસાર હેપી આનંદિત રહેતા લોકો અને અન્ય લોકો કરતાં સારું અને લાંબુ જીવન વિતાવે છે અને સ્વસ્થતાથી જીવન વિતાવે છે. તેમને બ્લડ પ્રેશર કે સ્ટ્રોક કે હૃદય સંબંધિત તકલીફો રહેતી નથી. જેટલા આનંદિત રહેશો એટલી તકલીફો ઓછી રહેશે. હેપીનેસની અસર વ્યક્તિના શરીર, મન અને કાર્ય પર વધુ જોવા મળે છે. જો બિઝનેસના સંદર્ભમાં વાત કરીએ તો કર્મચારીની હેપીનેસની સીધી અસર પ્રોડક્ટિવિટી પર જોવા મળે છે. ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી દ્વારા કરવામાં આવેલા રિસર્ચ અનુસાર સામાન્ય કર્મચારી કરતાં આનંદિત કર્મચારી 10% વધુ પ્રોડક્ટિવિટી ધરાવે છે. સાથે જ કર્મચારીઓ ઇનોવેશન અને ક્રિએટિવિટી ક્ષેત્રે વધુ કાર્યરત હોય છે. આપણો કર્મચારી જો સવારે સારા મૂડમાં આવ્યો હોય ને તો આપણે પ્રોડક્ટિવિટી વધારે આપી શકે. આપણી સાથે એને કામ કરવાનું પણ એ ઇન્ટરેસ્ટથી કામ કરતો હોય. તેવી જ રીતે આપણે પણ ફ્રેશ મૂડમાં અને સારી રીતે આનંદિત થઈને ગયા હોઈએ તો આપણે પણ આપણા બિઝનેસમાં, આપણા ગ્રાહકો સાથે, આપણા કસ્ટમર સાથે સારી રીતે બિહેવિયર કરી શકીએ છીએ. ઘરમાં જો કકળાટ કરીને નીકળાવીએ તો આપણું મન કોને શું બોલાઈ જાય અને એની અસર સીધી બિઝનેસ પર પડતી હોય છે. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હેપીનેસની સ્થાપના 2000માં કરવામાં આવી હતી. જ્યારે તેના સ્થાપક જસ્ટવિન સિંઘ દ્વારા આત્મહત્યાના એક કેસને સુખી જીવન જીવવા માટે સફળતાપૂર્વક સલાહ આપવામાં આવી. આ શરૂઆતથી જ પ્રોત્સાહિત થઈને સંસ્થાએ સ્પષ્ટ મિશન સાથે ખુશી માટે તેની માર્મિક લડાઈ શરૂ કરી હતી, જેના પ્રણેતા જસ્ટવિન સિંઘ આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. ત્યારે હેપીનેસ અને બિઝનેસ વચ્ચેનો ગૂઢ સંબંધ તેમના વ્યક્તિત્વ દ્વારા સમજીએ. આ હેપીનેસ રહેવું, એને કેવી રીતે એને અમલમાં મૂકવું અને એને આપણા જીવનમાં કેવી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું, તે દરેક બાબતે આજે આપણા જસ્ટવિન સિંઘ જે અહીંયા વક્તા છે, આપ સર્વેને માહિતી આપશે અને તેનો આપ અમલ કરજો તો આપણે બી આપણા જીવનમાં અને બિઝનેસમાં આપણે હેપી રહી શકીએ અને આપણા કર્મચારીઓને પણ એ બાબતે માહિતગાર કરીને આપણે લોકોનું ભવિષ્ય સુધારી શકીએ અને આપણી પ્રોડક્ટિવિટી વધારી શકીએ. વધારે કહેતો નથી, સાહેબ જસવીન સિંહ વધુમાં આપણે માહિતી આપશે. આભાર. જય હિન્દ, જય જય ગુજરાત. બહુ ટૂંકો અને ટચ અને સચોટ એમણે એક વાતો કરી. એમાં એક વાત એમણે એ પણ કરી છે કે ભાઈ વ્યવસાયમાં સુખ એ માત્ર સુખદ આડઅસર છે. આ બહુ સૂચક શબ્દ છે કે વ્યવસાયમાં એક સુખ એ માત્ર સુખદ આડઅસર છે, પરંતુ સફળતા માટે એ જ સુખ શક્તિશાળી ઉદ્દીપક છે. જ્યારે કર્મચારીઓ અને ગ્રાહકો ખુશ હોય ત્યારે ઉત્પાદકતા અને વફાદારી વધે છે. સકારાત્મક કાર્ય વાતાવરણ અને મજબૂત ગ્રાહક સંબંધોને પ્રોત્સાહન આપે છે. સુખને પ્રાધાન્ય આપવાથી વધુ નવીનતા, સહયોગ અને એકંદરે વ્યાપાર સ્થિતિસ્થાપકતા થઈ શકે છે. આ એમનો મુખ્ય મુદ્દો છે. તો અને એની જોડે જોડે આપણે આપણા આજના મુખ્ય મહેમાન જસવીન સિંઘને ફ્લોરલ ફેલિસિટેશન કરીશું અને એમને પોખવાના છે. તો વિજયભાઈને વિનંતી કરું એમને મોમેન્ટો અને સંજય સર. વિજયભાઈ આભાર. અને હવે એબાઉટ ધ પ્રોગ્રામ અને ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ સ્પીકર માટે આપણા થિંક ટેન્ક અને અમે એને અમારા જ્ઞાની પુરુષ કહીએ છીએ, જસવીન સિંઘને સાંભળવા માટે આપ સૌ આતુર હશો. હું સંજયભાઈ પંજાબી ગ્રુપ ચેરમેનને આમંત્રણ આપું છું. એબાઉટ ધ પ્રોગ્રામ અને ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ધ સ્પીકર આપશે સંજયભાઈ.
નમસ્તે પ્રમુખશ્રી અને મિત્રો, જો કોઈ ટેલિફોનિક દરરોજના આપણે ઓલમોસ્ટ મોબાઈલનો યુસેજ કરીબન 50 ફોન માટે તો થતો જ હશે, અને પહેલો શબ્દ કદાચ હલો હોય ત્યાર પછી આપણે એમ જરૂર પૂછતા છે કેમ છો, અને અચૂક એ જવાબ મજામાં આવતો હશે. આ મજામાં જે છે તે ખરેખર હેપીનેસ છે, અથવા તો કંઈક કન્વર્ઝેશન બિઝનેસના પણ એવા ચાલતા હોય કે શું નવા જૂની છે, તો સામેથી કદાચ જવાબ આવતો હોય એશ છે, શું ચાલે છે, ટનાટન છે. નોર્મલી આ વાતથી આપણે શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ. આ બધી વાતની અંદર એના ગર્ભ સુધી જઈએ તો કદાચ આપણે હેપીનેસ તરફનો ઇશારો કરવા માંગીએ છીએ, અને આજની હાલાતને જોતાં આપણે ઓલમોસ્ટ આખી દુનિયા ગ્રે ઝોનમાં ચાલે છે. એ ગ્રે ઝોન ચાહે ઇકોનોમીના રિલેટેડ હોય, એ ગ્રે ઝોન કદાચ બિઝનેસ મેટ્રિક્સ એટલા બધા ચેન્જ થતા હોય, અને એ બિઝનેસ મેટ્રિક્સને કારણે ઘણી બધી કંપનીઓની ઉથલપાથલ કદાચ થતી હોય, મંદી તેજીની વાત થતી હોય, ઇન્ફ્લેશન થતું હોય, યુક્રેન રશિયા વોર હોય, ઇઝરાયલ હમાસ હોય, ઈરાન હોય, કેન્યાની અંદર અત્યારે આખા પાર્લિયામેન્ટની ઉપર કબજો કરી લીધો. આવા સંજોગોમાં આપણે જ્યારે જીવતા હોઈએ તો હેપીનેસનું મહત્ત્વ વધતું જાય છે એવું ઘણા લોકો માને છે, અને એને પામવા માટે કોઈ પણ ઉપચાર કરવા માટે રેડી હોય છે. અને આ જ કારણને લઈને ચેમ્બર, જે થોડા વખત પહેલાં હું આપની સાથે વાત કરી રહ્યો હતો, ઘણા મિત્રો અહીંયા હતા, કે ઓનલી ચેમ્બર ઇન ધ કન્ટ્રી વિચ થિંક્સ એન્ડ એક્ટ્સ ઓન ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથ ઓફ ધ સોસાયટી, કે ખાલી બિઝનેસની વાત અથવા તો ડીલની વાત અથવા તો કેવી રીતે ગ્રોથ થાય છે તેની સાથે સાથે હોલિસ્ટિકલી સોસાયટીનું ડેવલપમેન્ટ કેવું થઈ શકે તેવી કરતી હોય, તો એવી આપણી ચેમ્બર SGCCIએ આવું વિચાર્યું કે આવા સંજોગોમાં આપણે એવા ક્વોલિટી પ્રોગ્રામ કરીએ કે જેનાથી ટ્રેડ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના વ્યક્તિઓને એક નવી દિશા મળે, એક નવું પર્સપેક્ટિવ મળે, અને એ ધ્યાનમાં રાખીને આજનો કાર્યક્રમની આ પરિકલ્પના થયેલી છે. આપણે સ્પીકર વિશે વાત કરીએ તો જે જસવિંદરસિંહ પાલ આજના સ્પીકર છે, કીનોટ સ્પીકર, એ પોતાને એમણે નવું નામ જસ્ટ બીન સિંહ આપ્યું છે. તેઓ 51 મોસ્ટ ફેબ્યુલસ ગ્લોબલ હેપીનેસ લીડર્સ awarded by World HRD Congress. He has been confirmed by the Pride of Baroda awarded by SHRP. He is also featured in India Today magazine and Aaj Tak TV. He has basically done his schooling from Dehradun with a first class throughout schooling. He has done his B Mechanical from REC, that is SVNIT Surat, with a distinction. He has done a postgraduate diploma in marketing and sales management from Bhavans College, and since 1988 to 1990, he began his career with a merchant navy engineer at Mumbai, and since 1990 he is serving as a director marketing for Messrs. Encon Thermal Engineers Private Limited. He has travelled across many countries on a professional grounds, and his special activities here we have to mention specially that he runs Institute of Happiness, and this Institute of Happiness has 3 basic objectives. One is that free counseling. They do a lot of free counseling. They carry out a lot of seminars and webinars across that pan-India and some part of the globe, and also whatever that income they generate out of this, it is also been partially distributed to more than 210 NGOs or charitable organizations across the globe. Jaswinder Singh's other activity includes that he is a professional trainer for 150 plus corporate houses such as ABB, ACC, Adani, Aditya Birla, Alstom, Bajaj, BHEL, Biocon, Bosch, Cadbury, Cadila, Coca-Cola, Colgate, Crompton, Eicher, Fag. I mean, you name them, more than 150 top companies have taken his services professionally. He believes to
live positively in a negative world. He believes into a happy growth, and he is speaker for PCRI, GEB, PhD Chamber of Commerce, and various other trade organizations. He has also been invited as a guest faculty, chief guest for many humanitarian organizations such as Lions, JCs, Rotary, Federation Forums, and other institutions. And important thing, he has written 5 best-selling books, and those are Happiness, Gain and Retain, Happiness Always and in All Ways, Happiness Here and Everywhere, Happiness Now and Forever, and Happiness Beyond Measure. So these are the books which are also available in many that portal also, as well as to the many bookstores. His motto of the life is very simple. I believe that when I share thoughts or ideas that make anybody's life more rewarding on planet Earth, I am doing God's work. So with this note, I am very, very much pleased and honored to present before you Jaswant Singh. नमस्ते। पगड़ी पहनी है, थोड़ा तो जोर से बोलो। नमस्ते। जय श्री कृष्णा। सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग। What is this? अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा रहे। भरी शाम को कह रहे हो गुड मॉर्निंग। आज जो भी ये सरदार जी बोले, डोंट बिलीव इन। मैं तो शाम को गुड मॉर्निंग बुलवा दूंगा। This is the biggest problem we are having, dear friends, कि अगर कोई 3-4 सच बोलता है तो चौथे झूठ को भी हम उसके साथ लग जाते हैं और बोलने लग जाते हैं। आजकल हमको बताया जा रहा है दुनिया बहुत खराब है, ध्यान रखने का, किसी को भरोसा नहीं करने का, सब बकवास। Media is trying to tell you that it's not a good world because that's how the product of media sells. आज ये मिथ्या तोड़ेंगे कि दुनिया बहुत खराब है, बहुत बेकार है। आज प्रूव कर दूंगा मुझे आपको कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। We are living in a beautiful world and it is पूरी सृष्टि आपके साथ है, ठीक है? तो प्लीज कीप योर मोबाइल ऑन साइलेंट। आई गारंटी यू आई विल मेक इट वर्थवाइल। ये 1 घंटा जो आपने मुझे गिफ्ट किया है, आई विल मेक श्योर आई विल ट्रिपल दैट गिफ्ट टू यू बैक। तो शुरू करते हैं। एक डॉक्टर के पास एक आदमी जाता है, वो अपना उसको जब रिपोर्ट दिखाता है, रिपोर्ट देख के डॉक्टर कहता है पीते हो? तो बड़े प्यार से कहते हैं हाँ जी बना लीजिए। लाइफ इज अ परसेप्शन। एक वहां से आदमी जा रहा था तो दीवार पे लिखा होता है पढ़ने वाला गधा। उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है, वो जाके उसको मिटाता है और पेन लेके लिखता है लिखने वाला गधा। एक रेस्टोरेंट में 2 आदमियों की बहस चल रही होती है। अंडा पहले आया था कि मुर्गी पहले आई थी, अंडा पहले आया था कि मुर्गी पहले आई थी। तो दोनों साइंटिस्ट होते हैं, वहाँ पे एक जो वेटर होता है उसको बोलता है चल तू ही बता यार, अंडा पहले आएगा मुर्गी पहले। कहते कितने सालों से आपको ये बात तंग कर रही है सर? कहते बरसों हो गए, आज तक दुनिया में कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। कहते इतनी छोटी सी चीज एक वेटर सॉल्व कर देगा सर आज आपके लिए। कहता बता अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई? कहता जो पहले ऑर्डर करोगे वो पहले आ जाएगा। लाइफ दोस्तों एक परसेप्शन है। आप जैसे जिंदगी को समझोगे जिंदगी आपको वैसे समझ में आएगी। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट लाइफ इज व्हाटएवर हाउ यू लुक एट लाइफ इज हाउ लाइफ विल रिस्पॉन्ड टू यू। हम मोस्ट ऑफ अस वी आर लुकिंग एट लाइफ इन अ पोस्टपोनमेंट एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड क्या है? अपना टाइम आएगा। अपना आया था ना गाना, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। 25 के होते हैं तो ऐसे जोश में करते हैं अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। 40 के होते हैं आएगा, थोड़ा डाउट आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा। 60 के हो जाते हैं आएगा, अपना टाइम आएगा। 80 के हो जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं इनका टाइम आ गया, बुला लो सबको। Most of us are missing out our life, dear friends, in a postponement attitude. हम ये भूल जाते हैं कि happiness can only happen now. कल मैं आपको बोलूँ 12:30 बजे कल आपको खुश होना हो पाओगे? So it's a feeling, it can be experienced now. हम लोग ये भूल जाते हैं, we keep living in a dream world. अपना टाइम आएगा, अपना टाइम अभी है, because this is the only time you have got. Happiness की अगर आप definition पे जाओ, happiness की definition है comes from the word hap, which literally means whatever happens. So happiness is the ability
to be with whatever is happening. एक एबिलिटी है कि जो हो रहा है वो लाइफ है, वो जो मैं सोच रहा हूँ वो लाइफ नहीं, जो हो रहा है वो लाइफ है। जब ये बात आपको क्लियर हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर फीलिंग अ लिटिल स्टक, कोई सिचुएशन में फंस जाते हो, तो स्टॉप करो, कॉन्टेम्पलेट करो और अपनी थिंकिंग की डायरेक्शन एक हैप्पियर वे में चेंज करो। हम लोग अटके रहते हैं, मैं क्यों करूँ, जिंदगी करो, हम अटके रहते हैं। हमारा वो हाल है कि एक आदमी दिल्ली के पास से जा रहा था तो एक दूसरे आदमी को कहता, भाई साहब ये दिल्ली कितनी दूर है? कहते जिस दिशा में आप जा रहे हो 40,068 किलोमीटर 65 किलोमीटर है, 40,065 किलोमीटर टर्न कर लोगे तो 10 किलोमीटर, नहीं तो पूरी दुनिया घूम के आओगे। हम लोग जिद में अटके रहते हैं कि मैं क्यों टर्न करूं, जिंदगी कहती है टर्न करो, कर लो। सो टुडे वी विल टर्न आवर डायरेक्शन इनटू थिंकिंग। हम लोग आज तक क्या कर रहे हैं, जब तक मेरे बाहर की दुनिया अच्छी है तो अंदर की दुनिया अच्छी है, हम आउटसाइड इन जी रहे हैं। हम शोले सिंड्रोम में फंस गए हैं कि जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरा बैंक बैलेंस चलेगा। हम आउटर कंडीशंस को कंट्रोल करके खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। दैट कैन नेवर हैपन, लाइफ इज इनसाइड आउट। आप अंदर की दुनिया को कंट्रोल कर लो, बाहर की दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। आपको मालूम है पूरी सृष्टि में स्पिरिचुअल फ्लावर लोटस क्यों है? कभी आपने सोचा? व्हाई इज इट नॉट अ रोज, व्हाई इज इट नॉट अ सनफ्लावर? स्पिरिचुअल फ्लावर दुनिया भर में एक ही है, लोटस। कभी सोचा कमल क्यों है? क्योंकि व्हाट डज द लोटस टेल अस? बी ऑफ द वर्ल्ड बट नॉट, बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। वो ये अपनी परिस्थितियां बदलने की कोशिश नहीं करता, वो कीचड़ को ठीक करने की कोशिश, कोई कीचड़ को ठीक करने की कोशिश नहीं करता। वो कीचड़ को संभव बड़ा, पहले मेरी कीचड़ ठीक हो जाए फिर मैं खिलूंगा। वो कीचड़ को यूज करके खिलता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी विल लर्न टुडे। वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम चाहें तो इनसाइड आउट हम कैसे खुश कर सकते हैं। क्योंकि अनलेस यू अंडरस्टैंड हाउ टू अनलॉक हैप्पीनेस इन द नाउ हियर, यू विल बी नोवेयर। अनलेस यू अंडरस्टैंड योर हैप्पीनेस इन नाउ हियर, यू विल बी नोवेयर। इसलिए मोस्ट ऑफ पीपल आर नोवेयर, दे आर फीलिंग नोवेयर। सेम वर्ड है, नाउ हियर, नोवेयर। So how do you do that? We have to first tame our mind. Because अगर मैं पूछूं what is life, कोई मुझे बता सकता है what is life? What is life? What is life? Everybody will have his own answer. Life is a celebration, life is a race, life is a fana, life is a... Life का एक basic concept समझ लीजिए। Life is nothing but a series of thoughts. जब आप सो रहे होते हो, वेयर इज लाइफ? यू आर एग्जिस्टिंग, यू आर नॉट लिविंग। बट जैसे ही आप जागरूक होते हो, थॉट्स चालू होती है, जिंदगी चालू होती है, राइट? इट्स अ सीरीज ऑफ थॉट्स एंड योर क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड योर लाइफ। सो बॉटम लाइन क्या है आपको मालूम? हम सबसे सुप्रीम क्रिएशन क्यों गिने जाते हैं दुनिया में? व्हाई आर ह्यूमन बीइंग्स कॉल्ड द मोस्ट सुप्रीम क्रिएशन इन द वर्ल्ड? व्हाई हैव यू एवर थॉट? जानवर और इंसान में सबसे बड़ा फर्क क्या है, कोई बता सकता है? थिंकिंग तो जानवरों में भी होती है, आप डंडा लेके जाओ उसको पता चल जाता है, आप मारने आ रहे हैं। हमारे पास विवेक है, अच्छे बुरे का ज्ञान, उनको भी पता है, इसलिए पेट को पता है कि कौन मेरा अपना कौन पराया है। बट यस, आप जो कहना चाहते हो वही है लेकिन राइट वर्ड नहीं। यस, कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करते हैं। तो कुत्ते को सुनो वहां से आ जाती है। हमको नहीं समझ में आता, वो बात अलग है। कम्युनिकेट तो करते हैं। वेल्स आल्सो कम्युनिकेट, इट हैज बीन प्रूवन। व्हाट इज द वन डिफरेंस? हमको ये डिफरेंस ही नहीं पता, इसलिए हम जानवरों की तरह ही हो गए। कुत्तों की तरह भौंकता रहता हूँ, गधों की तरह काम करता रहता हूँ, उल्लू की तरह जागा रहता हूँ। हमारी लैंग्वेज में जानवर घुस गया। मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग द लाइफ ऑफ अ चींटी एंड एंट। डू यू नो? हमें because we don't know the difference between a human being and an animal, we are all living like an ant. एक चींटी भी घर बनाती है, आप भी घर बनाते हो। एक चींटी भी काम पे जाती है, आप भी काम पे जाते हो। एक चींटी भी रिप्रोड्यूस करती है, आप भी रिप्रोड्यूस करते हो। एक चींटी भी रेनी डे के लिए सेव करती है, आप भी रेनी डे के लिए सेव करते हो। व्हाट इज द वन डिफरेंस बिटवीन यू एंड द चींटी? हमको ये पता ही नहीं है। तो हम तो एंट तो होती है, हम तो डेड एंट हो गए। इसलिए हमारा फेवरेट म्यूजिक है डेड एंट, डेड एंट, डेड एंट, डेड एंट, डेड एंट। हम डेड हो चुके हैं लिटरली। You know what's the one difference between an animal and a human being? We have consciousness.
वी हैव द पावर, अवेलेबिलिटी, एक्सपीरियंस का, कि हमको पता है, हम अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे जिंदगी जी सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो ऐसे जिंदगी जी सकता हूँ। एक जो गधा है वो गधा ही बना रहेगा, जो कुत्ता है वो कुत्ता ही बना रहेगा, जो शेर है वो शेर ही बना रहेगा। बट एक सिर्फ इंसान है, वो चाहे तो शेर बन सकता है, चाहे तो चूहा बन सकता है। वो एक शेर की शादी में एक चूहा नाच रहा होता है, मेरे भाई की शादी और मेरे भाई की शादी, सब कहते हैं तू तो चूहा है, वो शेर की शादी है, वो तेरा कैसे भाई हो गया? कहता शादी से पहले मैं भी शेर था। We have the power to choose whether we can be a mouse or a lion. It totally depends on us. And ये फैकल्टी हम जिस दिन यूज करना चाहेंगे, इसलिए भगवान ने आपको चॉइस दी है। 12 घंटे का अंधेरा, 12 घंटे का उजाला हो, कहता है आप डिसाइड करो आपने जिंदगी कैसे जीनी है। अगर आप जिंदगी को देखोगे, 2 घनी रातों के बीच में एक छोटा सा दिन, चारों तरफ अंधेरा। अगर आप देखोगे 2 खूबसूरत दिनों के बीच में एक छोटी सी रात, तो चारों तरफ उजाला। हाउ यू लुक एट लाइफ इज हाउ लाइफ विल रिस्पॉन्ड टू यू। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, कोई भी क्राइसिस में अगर आप आते हो, बिजनेस में या कहीं पे भी क्राइसिस में आते हो, यू हैव अ ऑप्शन ऑफ लुकिंग दैट क्राइसिस इन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वे। यू कैन आइदर फील अब्यूज्ड by that situation and keep complaining, or you can ably use that situation, right? हम ये क्यों नहीं कर पाते? Why are we not able to do that? Why are we not able to be here right now? Because of our untamed mind. हमारा mind untamed है। जब आप यहाँ होते हो आपको वहाँ होना होता है, जब वहाँ होते हो आपको यहाँ आना होता है। कोविड में बंद थे तो घर के बाहर जाना, अब बाहर जा रहे हो तो घर तो कभी आ जाया करो। You know, it is going on and on because we have an untamed mind. एक आदमी होता है, बड़ा अच्छा तीरंदाज होता है, वो एक वहाँ पे बड़ा संत माना हुआ तीरंदाज जंगल में रहता है। उसके बाद जाके कहता है मुझसे अच्छी आप तीर नहीं चला सकते, ये गारंटी है। वो तीर मार के दिखाता है, कहता बाकी तुम बड़े अच्छे तीरंदाज हो। एक काम करते हैं, असली टेस्ट तो यहाँ नहीं होगा, 2 पहाड़ियों के बीच में एक ऐसे पेड़ गिरा होता है, 2 ऊंची काफी खाई वाला पहाड़ी होती है, दोनों के अक्रॉस एक पेड़ गिरा होता है। तो कहता है कि एक काम करो, उस पेड़ के बीच में जाके तुम सामने वाली पहाड़ी पे जो पेड़ है उसको तीर मार के दिखाओ। तो कहता पहले आप जाओ। तो जो मास्टर होता है, जो संत होता है, वो लेता है अपनी तलवार आराम अपना तीर कमान लेके जाता है, बीच में वहाँ पे पहाड़ी के दोनों पहाड़ी के बीच में जो होता है पेड़ गिरा होता है, उसके ऊपर जाके आराम से खड़ा होता है, सामने तीर डाल देता है फर्स्ट क्लास पेड़ पे। अब ये जब जाता है, इसका दिमाग होता है गिरना जाऊं। ये तीर जितने भी मारता है एक भी नहीं लगता। तो उसको बोलता है यू हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल, यू आर वेरी गुड कंट्रोल इन एमिंग एंड फायरिंग द एरो, बट यू हैव लिटिल कंट्रोल इन द माइंड दैट इज अलाउइंग इट टू शूट। हमको अपने माइंड को टेम करना है। अगर आपको अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में अपने आप को खुश रखना हर पल में, तो you will have to tame your mind so that it becomes your servant and does not become your master. तो इसको कैसे करेंगे? How do you tame your mind? बहुत बड़ी चीज बोल दी ना, बहुत सिंपल है, इजी नहीं। 3 चीजें हैं, नीड्स हैं, दिमाग की 3 नीड्स हैं, उनको पूरा कर दो, दिमाग आपका हमेशा आपका गुलाम बना रहेगा। क्या 3 नीड्स हैं? पहली नीड, इट नीड्स टू बी डायरेक्टेड। You need to direct your mind only on what you want in life. Second thing, please keep your mobiles on silent, please. You know, all of you, please keep your mobile. Gift yourself 1 hour. Yes. What is the second need of the mind? It needs to be kept productively busy. उसको एक nourishment चाहिए, जो चीज में वो excited रहता है उसको और उसमें nourish करते जाओ. And third thing, the mind needs variety. It needs a plan to work upon. अगर आपको आज बोलते हैं, लिख देते कि आप आज जस्सी जी का यहाँ पे एक लेक्चर है, 29 दिसंबर को लेक्चर है, आप आते? आप अगर टाइम ही नहीं बताते आप आते? अगर जगह ही नहीं बताते आप आते? So your mind can help you and become your servant. The moment it gets clarity, the moment it gets a plan, it is very efficient in fulfilling a plan. हमारे पास प्लान ही नहीं होता जिंदगी का। हमने विल आफ्टर डेथ तो बना रखी है, विल बिफोर डेथ सबने बना रखी है। 40 के बाद अरे अभी तो बनवा लो यार, तो जिंदगी की विल कब बनाओगे? व्हाट डू यू वांट टू टेक आउट ऑफ दिस लाइफ, वो तो बनाना पड़ेगा। तो तीनों नीड्स के ऊपर एक एक करके अपन करते हैं, फोकस करते हैं। पहला चीज
फर्स्ट नीड ऑफ द माइंड क्या थी? इट नीड्स टू बी डायरेक्टेड। अगर सृष्टि को बदलना है तो दृष्टि को बदलना होगा। एक छोटा बच्चा अपने दादाजी को बोलता है कि दादाजी आजकल इतने नेगेटिव लोग क्यों हैं दुनिया में? कहता बेटे, हर एक इंसान के ना दिमाग में दो शेर होते हैं। एक पॉजिटिव शेर होता है जो सारी पॉजिटिव चीजों पे जीता है, प्यार, दोस्ती, अच्छाई, अच्छे कर्म। और एक नेगेटिव शेर होता है जो नेगेटिव चीजों पे जीता है। किस चीजों में? हेटरेट, लड़ाई झगड़ा, नफरत, चोरी। कहते दादाजी फिर कौन सा शेर जीतता है? कहते दैट लायन विल विन, जिसको तुम खाना खिलाओगे। अनफॉर्चुनेटली 99% दुनिया अपने नेगेटिव लाइन को 24 घंटे खाना खिला रही है। नेगेटिव न्यूज, छोड़ दीजिए वीडियो, छोड़ दीजिए, बाद में ये सब मेरा अवेलेबल है। ओके, आप मेरे को सुनिए, इस टाइम पे सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे ये एक्सपीरियंस करना। ये आपका माइक खराब हो गया बेटे। हेलो 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 चालू है, लेकिन चालू है, लेकिन चालू है। ये चीजें, दिस इज हैप्पीनेस। आप उसको एंजॉय करो जो भी सिचुएशन बन जाती है ना, rather than feeling ये हेलो हेलो। हाँ, तो दादाजी को पूछता है कि मतलब वो कहता है जिसको तुम खाना खिलाओगे, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज फीडिंग देयर नेगेटिव लाइन। 24 घंटे हम बैड न्यूज, पैथेटिक न्यूज, 24 घंटे बात करते रहते। एक हैरानी की बात है, जो बॉडी है जिससे हम 1000-2000 रुपए दिन की लेबर करके कमा सकते हैं ना, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा आपको अगर मेहनत करने जाओगे। उसको हम 3 बार बढ़िया खाना खिलाते हैं, रोज नहलाते हैं। अगर मैं कल बोलूँ कि गंगा का कीचड़ डाल के इसमें खिलाता हूँ, आप खाओगे? अरे पवित्र कीचड़ है, फिर भी नहीं खाओगे ना, आपको मालूम है खराब है आपके लिए, राइट? और इस माइंड जिससे आप लाखों दिन के कमा सकते हो, उसको क्या खिला रहे हो? सिर्फ नेगेटिविटी। सेप्टिक टैंक बना रखा है अपने दिमाग को। So what do you get it? If you are continuously feeding your mind negative news, negative things, 24 घंटे आप डिस्कशन में नेगेटिव कर रहे हो, guess what you will get in your life? Negativity. Who's to blame? So पहली चीज याद रखिए, डायरेक्ट योर माइंड टू फोकस ओनली ऑन व्हाट यू वांट। क्योंकि अगर व्हाट यू डोंट वांट पे आप फोकस करोगे, वो आपकी जिंदगी में आ जाएगी। माइंड हमारा ना गूगल की तरह है। अगर इसमें लिखो ना आई डोंट, मतलब कुछ भी आप जो भी लिखोगे, आप जो आप लिखोगे डोंट, वो डोंट वर्ड नहीं समझता। आपको मैं अभी प्रूव करता हूं। अगले 10 सेकेंड डोंट थिंक ऑफ अ मंकी। स्टार्ट। क्या हुआ? क्या हुआ? मंकी आया। एग्जैक्टली दिस इज हाउ द गूगल वर्क्स। अगर आप लिखोगे गूगल पे आई डोंट वांट मंकी, वो डोंट माई वांट को हटा के सिर्फ मंकी की फाइल खोलेगा। अगर आप लिखोगे आई डोंट वांट अनहैप्पीनेस, वो डोंट वांट को छोड़ के सिर्फ अनहैप्पीनेस की फाइल खोलेगा। सो फ्रॉम टुडे रिमेंबर वन थिंग, थिंकिंग अबाउट समथिंग इज योर एनर्जेटिक वे ऑफ इनवाइटिंग इट इनटू योर लाइफ। ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोलता हूँ। थिंकिंग अबाउट समथिंग इज योर एनर्जेटिक वे ऑफ इनवाइटिंग इट इनटू योर लाइफ। तो जो चीज आपको नहीं चाहिए, हम अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर 24 घंटे उसको एनर्जाइज करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अवॉइड करो, उनके बारे में सोचो ही मत, बट इतना मत सोचो कि 24 घंटे आपके जहन में सिर्फ प्रॉब्लम आए। सोल्यूशन का सोचो। एंड सबसे बड़ी चीज है, हम लोग इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द वर्ल्ड, हाउ अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आप खुद अपनी दुनिया कैसे बना रहे हो। एक बहुत बड़ी मिथ्या में रहते हैं हम दोस्तों। हमको लगता है हम दुनिया में रह रहे हैं, गलत। दुनिया हम में रहती है। कहाँ होती है दुनिया? जब आप सो रहे होते हो। कहाँ होते हैं? सो रहे होते हो, कोई दुनिया नहीं होती। जैसे ही जागते हो दुनिया चालू होती है। अगर उस दिन गोवा में सुबह उठे आपको पता है अभी 11:30 बजे बियर खुलने वाली है। जिंदगी कैसे चलती है? स्लो मोशन में। इसलिए आज तक किसी का भी वेकेशन में एक्सीडेंट नहीं हुआ। सुना वो वेकेशन में गया तो उसकी गाड़ी टूट गई, सुना नहीं। लेकिन जिस दिन आप लेट हो रहे हो अपने कोई अर्जेंट कस्टमर को मिलने के लिए, सारी दुनिया की गाड़ियां रोड पे हैं। क्या बदला? आप। तो आउटर वर्ल्ड याद रखिए, बाहर की दुनिया आपका कांस्टेंट आपको रिफ्लेक्शन दे रहा है। अगर आपको वहां बाहर, अगर आपको घमंडी लोग देख रहे हैं, आपके अंदर घमंड है नहीं, तो आपको कैसे पता घमंडी कैसे होता है?
So whatever you are seeing outside is a reflection. जिस दिन आप गुस्से में होगे सारी दुनिया गुस्से वाली दिखती है, जिस दिन आप नफरत में होगे सारी दुनिया नफरत वाली दिखती है, जिस दिन आप प्यार में होगे आपको दिल करता है अपने दुश्मन को भी पप्पी दे दूं, और जिस दिन आप खुश होगे आपको कोई रोक ही नहीं सकता, सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो। क्या बदला? आप। So remember, we are trying to control the outer world. Don't try to do that. Control the inner world because outer world is a reflection of your inner world. आप अभी मुझे कहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हो? आप मेरे को अभी कहाँ सुन रहे हो? कोई बता सकता है कहाँ सुन रहे हो आप? अपने कान में। I am not on the stage. You are hearing me in your ears. अब मेरे को कहाँ देख रहे हो? अपनी आंखों में। मैं स्टेज पे नहीं हूँ, आपकी आंखों में हूँ। आप अपना मुंह हटा लोगे मैं गायब हो जाऊंगा आपकी जिंदगी से। So please understand, everything is outer world. अभी मैं आपको बोलूं ओनली ब्राउन चीजों पे फोकस करो, तो जो जो चीजें आपने अभी तक नहीं देखी थी सडनली आपकी जिंदगी में आ जाएंगी। अभी तक थी लेकिन आपको दिखी नहीं थी। तो जो चीज पे आप फोकस करते हो जिंदगी कहती है इसे और चाहिए, उसको तथास्तु करके देती रहती है। तो आज से ओनली फोकस योर माइंड ऑन व्हाट यू वांट इन लाइफ, क्योंकि अगर आप अपनी फोकस व्हाट यू डोंट वांट पे रखोगे तो व्हाट यू वांट आपके सामने भी आ जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जुनैद जो था बहुत बड़ा मिस्टिक था, तो उसने एक दिन अपने दोस्त को बोला, ऐसे ही बात चल रही थी, उसके दोस्त उसको कहता है ये देखना ब्रिज, छोटा सा वहाँ पे पुलिया था गांव में, उसके सामने वहाँ पे एक मिस्टिक रहता था, मतलब एक बेगर रहता था। बेगर वहाँ पे रहता था, ये मिस्टिक उसकी तरफ दूसरी साइड पे रहता था। मिस्टिक मतलब जो संत जुनैद दूसरी साइड रहता था। और उसका दोस्त कहता है वो गरीब को मौका नहीं मिला, अगर मिल जाता ना तो ये भी कहाँ का कहाँ निकल जाता। कहता है उसको मौका देगा तो भी नहीं, क्योंकि 24 घंटे वो कंप्लेन करता है कि जिंदगी तूने मुझे ये नहीं दिया, जिंदगी तूने मुझे ये नहीं दिया। कहता मैं नहीं मानता, उसको मौका नहीं मिला। कहते करके देख लेते हैं। राजा के पास गए, राजा को बोला कि सर एक हमको ना गोल्ड का अशर्फियों से भरा हुआ पॉट दे दो, आज हम एक ट्रायल करने वाले हैं, और ये अनाउंस कर दो कि 5 से 6 के बीच में इस ब्रिज के ऊपर कोई नहीं जाएगा, सिर्फ ये भिखारी को पता नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं हम। तो जी शाम को 5 से 6 रोज, उन्होंने इसलिए बोला होता है क्योंकि वो भिखारी रोज 5 से 6 के बीच में उधर से इस तरफ आया करता है भीख मांगने। अब पूरा सेटिंग हो जाता है, राजा वो दोस्त और जुनैद एक तरफ चुपचाप पेड़ से देख रहे होते हैं, मिडल ऑफ द ब्रिज में वो पॉट लगा देते हैं गोल्ड का। कहते हैं आप देखते हैं। अब वो जो आदमी होता है, बेगर होता है, जो वहां से निकलता है, वो गोल्ड पॉट के साथ में से निकल के सीधा निकल जाता है, देखता तक नहीं है। ब्रिज के बीच में गोल्ड से भरी हुई पॉट पड़ी होती है, देखता तक नहीं, दूसरा तरफ निकल जाता है। तो ये सारे जाके कहते हैं ये क्या हो गया। वो सारे उसको झपट के पूछते भी तेरे को वो सोने की अशर्फियां नहीं दिखी? कहते हैं नहीं सर, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कभी अगर मौका मिलेगा तो ये ब्रिज में आंखें बंद करके पार करूंगा। आज मैंने देखा कि कोई भी नहीं है, आज मैंने आंखें बंद करके ब्रिज पार कर लिया। बॉटम लाइन, सामने आई हुई चीज भी नहीं दिखेगी अगर आपका फोकस ऑन व्हाट यू डोंट वांट पे रह जाएगा, इट इज गोइंग टू रिमूव दैट। तो पहला मंत्र हैप्पीनेस का क्या है? कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी फैमिली रिलेशनशिप है, कुछ भी है, पीपल एंड सर्कमस्टेंसेस आर नॉट योर, they are not your reasons for your happiness. They are not your reasons for your happiness. The only reason of your happiness is when you can focus, direct your mind to focus on only what you want in life. पहला हो गया। सेकेंड चीज क्या थी? प्रोडक्टिवली बिजी। एक आदमी नदी के पास से जा रहा था, एक बोतल आती है, उसका ढक्कन खोलता है, अंदर से जिन बाहर आता है। आपने मेरे आका मुझे बाहर निकाल दिया, आप जो मांगोगे आपकी हर एक तमन्ना मैं पूरी करूंगा, सिर्फ एक शर्त है, मुझे कभी खाली मत छोड़ना, नहीं तो मैं आप ही को खा जाऊंगा। वो कहता तू चिंता मत कर, इतनी तमन्ना है, तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और वो 3-4 साल में सारी उसकी तमन्नाएं खत्म हो जाती है, एक एक चीज वो पूरी कर देता है। एक दिन वो सोच रहा था क्या करूं, तब देखता है जिन इसकी तरफ भागते हुए आ रहा है, क्योंकि उसको अब कुछ काम नहीं दिया इसने। कभी इसको एक आइडिया आ जाता है, कहता रुक, एक खंबा लगाता है, कहता है जब भी मैं तेरे को कोई काम नहीं दूं, कोई तमन्ना नहीं दूं, तेरा काम है इस खंबे पे ऊपर नीचे जाते रहने का। मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग दैट। हमारा माइंड ये जीनी है, हमने उसको कहाँ लगा रखा है? सुबह टीवी सीरियल, न्यूज, वापस आगे न्यूज़पेपर, ये सुबह शाम वही चीज कराई जा रही है, उसको खंबे पे लगा रखा है, जबकि वो आपकी सारी तमन्नाएं पूरी कर सकता है।
You know, so whenever instead of investing your mind in all these, regularly following the news, following the TV, following what happening in the world, अपने ऑफिस में बहुत गॉसिप हो रही है, उस चीजों पे फोकस रखने की जगह फोकस योर माइंड ऑन मेकिंग योरसेल्फ अ मोर वैल्यूएबल ह्यूमन बीइंग. अपनी वैल्यू बढ़ाने पे जोर लगाओ. वो एक आदमी अपने दोस्त के पास आके कहता है, यार मुझे लगता है मैं भगवान हूँ. कहता तुझे कैसे लगता है? कहते जहां पे भी जाता हूं सब यही कहते हैं, हे भगवान तू फिर आ गया. दिस इज नॉट द वे टू बी वैल्यूएबल. वो अपने आप को भगवान समझ. दिस इज नॉट द वे टू बी वैल्यूएबल. व्हाट्स द वे टू बी वैल्यूएबल? जेन्युइनली यू हैव टू बी. आपको मालूम है सैलरी वर्ड कहां से आया था? हम कहते हैं ना मैंने तो વધારે सैलरी જોઈએ છે મલ से. वो कहां से आया था सैलरी वर्ड? पुराने जमाने में जब रोमन्स के टाइम पे जब पैसा नहीं था, सो सैल केम फ्रॉम द वर्ड सॉल्ट. सॉल्ट उस टाइम पे नमक बहुत रेयर बट एसेंशियल कमोडिटी होती थी. तो जितनी कोई वैल्यू देता था उसको सैलरी इन द फॉर्म ऑफ उतने नमक मिलता था. बार्टर सिस्टम होता था तब. तो बॉटम लाइन दैट टाइम वाज आल्सो वैल्यू. बॉटम लाइन राइट नाउ आल्सो इज वैल्यू. द मोर वैल्यू यू गिव द मोर सॉल्ट या सैलरी यू गेट. पहले वो सॉल्ट में मिलता था, अब मनी में मिलता है. Want more money? How many of you want more money? All of you want more money? Yes. Give more value. आई? हमने सोचा था फ्री में कुछ करवा देंगे सर. Want more money? 3 words. Give more value. Want more money? Give more value. Simple. You know when you buy the latest mobile, क्यों खरीदते हो latest mobile ज्यादा पैसे पे? More value. It's an upgraded version. It has a more value addition. Ask yourself, are you an upgraded version? Are you an upgraded version? What new version, what new feature have you added to yourself? हम लोग सोचते हैं मैं तो इतने सालों से हूँ. वैल्यू एडिशन बताओ क्या किए. एक एम्प्लॉय को हमने स्टडी किया, वो 10 साल से एक कंपनी में था. कहता मैं 10 साल से इस कंपनी में हूँ सर. बाद में पता चला कि उसके पास वैल्यू जो थी 1 साल की थी 10 गुना. जो पहले साल सीखा था वही चलाई जा रहा है 10 साल. Why would anybody pay? आप अभी आईफोन साथ में रखूंगा और नोकिया साथ में रखूंगा, आप उसके दोनों को सेम पैसे दोगे? नोकिया तो पुराना है, आपका इतना साथ दिया था उसने उस टाइम. कंपनीज भी नहीं देखती ये चीजें. अगर आप बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होना है, you have to constantly upgrade yourself. You know what's the definition of an earning ability? What's the definition? It's an ability to get results for which people will pay you for. Ask yourself, what are the abilities I am developing that I can get results so that people will pay me for? What is the new feature you have added to yourself? हर महीने एक सेल्फ ऑडिट कीजिए, और अगर एक भी चीज आप अपनी ऐड नहीं कर सकते, तो एक कौन सी चीज है जो मैं पिछले महीने नहीं कर सकता था इस महीने कर सकता हूँ, वो चीज लिखिए. और अगर एक भी चीज नहीं लिख सकते तो आप में और कद्दू में ज्यादा फर्क नहीं है. कद्दू भी एग्जिस्ट कर रहा है, आप भी एग्जिस्ट कर रहे हो. इफ यू वांट टू लिव यू हैव टू कीप growing. Most of us, instead of growing our mind to become more productive in life, we keep thinking, अरे पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा. We keep distrusting. You know why we are not able to go and try new things? Because हमको faith नहीं है जिंदगी में. पता नहीं जिंदगी मेरे साथ होगी कि नहीं. आज जिसको भी डर है कि जिंदगी मेरे साथ नहीं है, जिसको भी ये डर है, आज ये डर परमानेंट खत्म कर देते हैं. आप कोई भी इंसान को जानते हो जिसने इस नियत से बच्चा पैदा किया था कि एक बच्चा पैदा करूंगा, उसकी बैंड बजाऊंगा, उसको इतनी घटिया जिंदगी दूंगा. याद रखिएगा, किसी माँ बाप ने इस नियत से बच्चा पैदा किया आज तक? किसी को जानते हो आप? No. तो जब एक माँ बाप छोटा सा तुझ प्राणी ऐसा नहीं सोच सकता, सृष्टि ऐसा क्यों सोचेगी? Why will creation create you to destroy you? तो फिर जसी भैया क्यों नहीं लगता कि जिंदगी मेरे साथ है? आपको मालूम है आपको क्यों नहीं लगता जिंदगी आपके साथ है? क्योंकि आप चाहते हैं जिंदगी आपके हिसाब से चले. जिंदगी आपकी विशेष के हिसाब से नहीं चलेगी, वो आपके पोटेंशियल के हिसाब से चलेगी. अगर आपको उसने 6 गियर की गाड़ी बनाई है, आप सेकंड गियर में चली जा रहे हो, जिंदगी आपको छोड़ेगी नहीं. वो आपको प्रॉब्लम देगी, पुश करेगी, गो टू द नेक्स्ट लेवल, गो टू द नेक्स्ट लेवल. बिकॉज कैसा लगेगा अगर आपको एक ब्रांड न्यू गाड़ी लेके दूं 6 गियर की और आप सेकंड गियर में चलाते रहोगे? सेकंड गियर में चलाने से क्या होता है? प्रोग्रेस नहीं मिलता. कितना भी पैडल दबा लो, प्रोग्रेस नहीं मिलता. तेल ज्यादा जलता है.
वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है, इंजन गर्म होता है, इलनेस होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं when you are trying to not do anything to improve your productivity. So happy people are constantly increasing their productivity, they are increasing their value because they know the more value they give, the more salt they get. So दो तरीके से जिंदगी आपको ग्रो करने की कोशिश करती है, या तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओ कि खुद लर्निंग करो, खुद सीखो अपने सब्जेक्ट के बारे में और या फिर जिंदगी को आपको प्रॉब्लम देनी पड़ेगी आपको गियर चेंज करने के। प्रॉब्लम भी अच्छी बात है। इट वाज अ प्रॉब्लम वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, सो वी क्रिएटेड द साइकिल। इट वाज अ प्रॉब्लम साइक्लिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, वी क्रिएटेड द motorcycle. It was a problem taking more people on the motorcycle, we created the automobile. It was a problem taking the automobile overseas, we created the aircraft. Bottom line, every problem made us grow to the next level. So आज से आप आपको एक ही सवाल पूछो हर महीने, what is the one thing I couldn't do last month that I can do this month? Start increasing your productivity. The more you are. So second mantra of being happy in any business, in any life, in any situation is to remember that how can I be a more valuable human being? Whether it is in my relationship, whether it is my business, whether it is in any health issue, anything. How can I be a more valuable human being? Second चीज, जब आप अपने माइंड को प्रोडक्टिवली ऐसे रखोगे ना, वो भी आपको लाइक करेगा. इट विल ऑल्सो फील हैप्पी दैट यू हैव बीन कंटिन्यूअसली यूजिंग इट. खाली पड़ी हुई चीज सड़ जाती है, देखा है ना हमने, सो यूज करते रहो तो माइंड लव्स इट. थर्ड हैबिट ऑफ द टू अनलॉक हैप्पीनेस, थर्ड हैबिट नीड दैट द माइंड हैज, इट नीड्स वैरायटी एंड अ प्लान टू वर्क अपॉन. अगर मैं सेम जोक आपको 10 बार सुनाऊंगा, आप क्या करोगे? पागल हो गए सर, बोलोगे ना. क्यों? क्योंकि दिमाग पागल हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप, ये क्या वही जोक बार बार सुनाई जा रहे हो. अभी तो माइंड नीड्स वैरायटी. सो लॉट ऑफ पीपल टेल मी, आप कैसे खुश रहते हो सिंह साहब? जब देखो आप बड़े खुश रहते हो. मैं कहा बिकॉज़ आई कंटिन्यूअसली गिव वैरायटी टू माय प्रोडक्टिव माइंड, दैट टू इन द डायरेक्शन आई वांट टू गिव इट. जिधर मैं वैल्यू देना चाहता हूँ उस डायरेक्शन में ही. फॉर एग्जाम्पल, हमने जब इंस्टीट्यूट ऑफ हैप्पीनेस चलाया था, बाय डिफॉल्ट चालू किया था, मेरा एक दोस्त सुसाइड करने वाला था. I was able to get him out of it in 2 hours, and he was suddenly a very happy man. He came, flew to Baroda and told me कि इसको लाइटली मत लो. तो हमने लाइटली नहीं लिया और एक इंस्टीट्यूट ऑफ हैप्पीनेस चालू किया. ऐसा एक स्टिकर बनाया था. अब तो इस पर वेबसाइट है, उस टाइम पे मोबाइल लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है सिर्फ, इफ़ यू आर फीलिंग डाउन कॉल जस्सी, और घर का नंबर दिया था. जिंदगी आपको, अगर आप चाहो, तैयार हो, तो जिंदगी आपको बहुत बड़े लेवल पे यूज कर सकती है. That's how I started getting into. Then a lot of people told me, जैसे भैया आपको मिलते हैं तो बड़ा दम आता है, जैसे ही आप जाते हो तो हम फिर ठुस हो जाते हैं, तो कुछ लिखो. So we started writing a Be Happy course, a postal course that used to go to 19 countries and 92 cities of India. लोगों ने कहा कोर्स हट जाता है, इधर मतलब पोस्टल वो बुकलेट हो जाती है सर, बुक फॉर्म में निकालो. तो हमने 5 किताबें निकाल दी, हर एक साल के 12 चैप्टर एक किताब में है. इट वॉज द फर्स्ट कंप्लीट कोर्स इन हैप्पीनेस, एंड दिस इज अवेलेबल नाउ इन ऑल अमेजॉन जहाँ पे भी आप तो जस्टविन सिंह लिखेंगे आपको ये 5 किताबें मिल जाएंगी. फॉर एनी रीजन यू कैन नॉट अफोर्ड टू बाय देम, मेरे को लिखिए, मैं आपको फ्री में भेजूंगा. बॉटम लाइन क्या है? स्टार्ट गिविंग. तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू अननोन पीपल. फिर कई लोगों ने कहा सर आप यार आपका तो वेबसाइट होना चाहिए, तो हमने एक वेबसाइट बना ली. फिर कई लोगों ने कहा सर आप तो इतना अच्छा ऐसे बोलते हो तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चालू करो. हमने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चालू कर दी. फिर सबने कहा कि सर हर जना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग तो नहीं अटेंड कर सकता ना सर, तो कुछ आप यूट्यूब चालू करो. तो हमने यूट्यूब चैनल चालू कर दिया. अगर आप जस्टविन सिंह देखेंगे वहाँ पे, यू कैन सब्सक्राइब और यू कैन राइट टू मी, आई विल पुट यू ऑन इट. बॉटम लाइन, वी रीच्ड आउट टू मोर पीपल आउट देयर. देन पीपल टोल्ड मी, जैसे भी आप पढ़ते हैं किताबों में नहीं, नेट पे पढ़ते हैं. तो हमने ब्लॉग लिखने चालू कर दिए. फिर सबने बोला जैसे भैया लॉकडाउन हो गया है, तो वेबिनार, मुझे तक तो नहीं पता था वेबिनार क्या होता है, बट आई लर्न एंड वी डिड मोर देन 206 webinars in the whole lockdown period. So more productivity than ever before. So bottom line क्या है? अभी सबने बोला सिंह साहब अब एक एक सवाल की रील निकालो, तो वो भी चालू कर देंगे. बॉटम लाइन क्या हो रहा है? आई एम गिविंग वेराइटी to my mind to remain productive in the direction that I want to add value. It is not difficult. हम सोचते हैं पता नहीं यार, this is a way.
जैसे मैंने आई एम अ डायरेक्टर मार्केटिंग फॉर अ कंपनी एनकॉन, ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल कंपनी, वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ गुड वर्क फॉर द वर्ल्ड। तो जब मैंने चालू किया था, आई वाज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, कुछ भी नहीं आता था, बहुत स्टडी किया सब्जेक्ट, फिर छोटे से ऑडियंस को चालू किया बोलना, फिर और स्टडी किया, तो फिर टेक्निकल मैगजीन में मेरे आर्टिकल्स आने लग गए, और स्टडी किया, became started giving larger this thing, and finally today the company has got a president's award for the best technology given to the country. कंटिन्यूअसली हम नई नई चीजें निकालते जा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स निकालते जा रहे हैं। तो देखिए आप, बाहर की दुनिया में एनकॉन के थ्रू इतनी सारी वैरायटी, अंदर की दुनिया में इंस्टीट्यूट ऑफ हैप्पीनेस के थ्रू इतनी सारी वैरायटी। तो कई लोग कहते हैं जैसे भैया आपको तो पता है हम क्या करें, आपको तो पता है हम क्या करें। तो आप भी, आपको एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ दिस थिंग, यू कैन फाइंड आउट हाउ कैन आई बी ऑफ मोर यूज टू माय ऑर्गेनाइजेशन, how can I financially uplift my company and my people, how can I take out new products that will serve more people, how can I करते रहिए, वैरायटी आपका दिमाग देता रहेगा, बताता रहेगा, ऐसे करिए। सो फ्रॉम टुडे स्टार्ट लुकिंग एट ऑल द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस where you can be of use. Don't keep feeling इतनी ही है मेरी प्रोडक्ट रेंज, इतने में ही करना है। Start expanding, get into that, and continuously keep doing good work, आपका वापस आएगा ही जवाब। So वैरायटी देना मत भूलिएगा अपने दिमाग को। It wants constantly something new. It wants to create. And then the most important thing is you must give it a plan. देखो आपके पास गाड़ी है, आपके पास प्लान नहीं है, कहाँ जाओगे? आपके पास प्लान है, आप बस में भी पहुंच जाओगे। So what's your plan? How can you make a better future? कई लोग मुझे कहते हैं आप कैसे करते हो सर? बड़ा सिंपल है, मैं अपने बहुत सारे सेशंस, अभी मैंने लेटेस्ट सेशन लॉन्च किए, द फियर एंटीडोट, अभी एक और सेशन लॉन्च किया शी पावर लेडीज के लिए, स्ट्रेंथ हैप्पीनेस एंड एंथुसियाज्म इन अ वुमन। इफ यू वांट यू कैन कीप डूइंग दैट। और कैसे नए नए सेशंस बना रहा हूँ, 6th बुक अपनी लिख रहा हूँ, गुडनेस ऑलवेज विंस, बेसिकली वेज ऑफ हाउ टू be of use to the world. So start having a plan in your mind to be of use to the world. जब आप ये कर लोगे, दुनिया अपने आप आपके साथ में हो जाएगी, दुनिया आपके साथ, आपकी सृष्टि आपका हर एक इंटेंशन पूरा करेगा। क्योंकि आपकी एक ही लाइन याद रखिए, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और नियत तुम्हारी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी। तो आज से अपनी नियत अच्छी रखिए, कर्म अच्छे रखिए। आई गिव एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रू स्टोरी। एक बहुत साल पहले एक ऐसा देश था जहाँ पे बहुत अमीर देश था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के जो राजा थे वो उसको खाते चले गए, उसको गरीब कर दिया। क्योंकि उधर का एक रूल था कि 5 साल के बाद जो भी राजा है उसको दूसरी तरफ नदी के जंगल में वहाँ छोड़ देंगे, उसको शेर चूर खा देंगे एंड ही डाई। सो द राजा 5 साल जीने के लिए वो लूट पटांग करता था, सारी अय्याशियाँ करता था, बॉदर नहीं करता था प्रजा के बारे में। एक टाइम ऐसा आया, नोबडी वांटेड टू बी किंग। फिर एक यंग आदमी, अच्छी नियत वाला, अच्छी एक्शन वाला, ही बिकेम द किंग। उसने ऐसे ऐसे तरीके ढूंढे, ऐसे ऐसे तरीके आजमाए कि सारे जो है बहुत खिल उठे। इट बिकेम अ वेरी अबंडेंट, वेरी हैप्पी, वेरी प्रोग्रेसिव कॉन्टिनेंट। वो पूरी मतलब जो नेशन बहुत खुश हो गए। 5 साल कब निकल गए पता नहीं चला, बहुत हरियाली हुई, बहुत खुश हुए लोग। 5 साल के बाद सारों ने उसको रोकने की कोशिश करी कि सर मत जाओ, आपने तो इतना भला किया है, छोड़ दो, तोड़ दो ये रूल। कहते नहीं, रूल जो है जाएंगे। वो बोटमैन भी रोने लग गया कि आपको मालूम है सर, अभी आपको नदी के पार छोड़ूंगा और आपको खा जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, एक बात सुन, बोटमैन को बोलता है, अगर मैं दूसरों के बारे में सोच सकता हूँ, तुझे नहीं लगता मैंने अपने बारे में सोचा होगा? जब ये सबके लिए मैं काम कर रहा था, साथ साथ मैंने एक छोटा सा महल जंगल के बीच में बनवा लिया है, जहाँ पे मेरे अजीज लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं। हमने वहाँ पे ऐसा गार्डन गुडन का वो कर दिया है, और हम लोग उसको, हमने ऐसा को एग्जिस्टेंस का वो बना लिया है, जानवर अपनी तरफ, इंसान अपनी तरफ, को एग्जिस्ट करेंगे हम साथ। व्हाट इज द बॉटम लाइन? चाहो कोई भी सिचुएशन में अपने आप को आप को एग्जिस्ट करा सकते हो, कोई भी एग्जिस्टेंस में। हम लोग क्या नेचर को रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। पैंडेमिक आएगा, मारेगा, चाटा खत्म कर देगा सबको। जब उसने डायनासोर को नहीं छोड़ा, आपको लगता है कि सृष्टि बॉदर करेगी कुछ प्राणी के लिए? तो हमको वी आर नॉट हियर टू कॉन्कर द वर्ल्ड। जैसे सिकंदर एक बार वर्ल्ड कॉन्कर करके जब जा रहा था, डेजर्ट के बीच में सेपरेट हो गया अपने
ट्रूप्स से, प्यासा मर रहा था। तो एक संत वहां से जा रहा था, उसको कहता है आई हैव कॉन्कर्ड द होल वर्ल्ड, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आई विल गिव यू हाफ द वर्ल्ड। तो संत ने कहा मैं नहीं दूंगा पानी। कहता है अच्छा आई विल गिव यू द होल वर्ल्ड, तू मुझे एक ग्लास पानी दे दे। कहता है अगली बार कभी घमंड मत करना कि तूने दुनिया को कॉन्कर कर लिया है। वी हैव नॉट इवन कॉन्कर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। सो आज से वी डोंट हैव टू कॉन्कर द वर्ल्ड, वी हैव टू ईज। कॉन्कर करके क्या कर लोगे? ये दुनिया अगर सबसे नंबर 1 भी बन गए दुनिया के, तो क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया? एक इतना सा प्लेनेट है, ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ प्लेनेट्स के बीच में अगर आप अर्थ को ढूंढने की भी कोशिश करोगे ना यूनिवर्सल, उसमें तो दिखेगी नहीं। उसके आप राजा बन गए, एक डॉट भी नहीं है उसके राजा बनना है तो यूनिवर्स जो कर रहा है वो करो। यूनिवर्स क्या कर रहा है? भला कर रहा है। यूनिवर्स क्या कर रहा है? इस मोमेंट में जियो। डायोजीनिस बैठा था आराम से, नंगा संत था एक, बैठा था आराम से। तो सिकंदर उसके पास आके बोलता है कि तुम तो बड़े खुश लग रहे हो, सबसे खुश आज इंसान देखा है, तुमसे ज्यादा खुश इंसान नहीं देखा। कहता है मैं आ जाओ, तुम भी लेट जाओ। सिकंदर कहता है नहीं, आई कैन ओनली रिलैक्स आफ्टर आई हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। कहता तू तो वाकई सिक अंदर है, अंदर से तू बीमार तू, क्योंकि मैं तो अभी एंजॉय कर सकता हूँ, लेट सकता हूँ, तू कॉन्कर करके आएगा, लेटेगा। Most of us we are trying to conquer the world. When do conquer, I have ambitions, I have dreams. The mind has to be kept productively, but not at the cost of the present moment. अभी जीना मत भूल जाओ, just in the this thing of living your goals. आप अच्छे कर्म करते जाओ, don't try। हम लोग क्या करते हैं, गोल ओरिएंटेड क्यों हो जाते हैं? हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ग्रेट हैं। और जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो नहीं दिखाना चाहते, जो सिंपल रहना चाहते हैं, जो जानना भी नहीं चाहते कि दुनिया में हम आए हैं, किसी को पढ़िए या ना पढ़िए, बताना भी नहीं चाहते, वो बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। क्योंकि 99% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की तमन्ना रखते हैं, वो ऑर्डिनरी हो गए। और जो 1% ऑर्डिनरी रहना चाहता है, वो बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट साकी है गुरु नानक जी की, कि गुरु नानक जी एक गाँव से निकल रहे थे, तो उन्होंने पहले ही उसको एक ग्लास भर के दे दिया पानी का, दूध का, पूरा भर के उनको भेज दिया, एंट्रेंस पे ही रोक दिया। तो पूरा एकदम टिप तक भरा हुआ था, तो उन्होंने एक गुलाब की पंखड़ी उसके ऊपर रख दी और वापस भेज दिया। तो मर्दाना कहता है कि क्या थी ये, क्या सारा सिलसिला क्या हुआ? कहता वो उन्होंने मेरे को एक हिंट दी भेज के ग्लास की, इधर ऑलरेडी बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे अक्लमंद हैं, आपके लिए जगह नहीं है। तो मैंने ऊपर एक पंखड़ी रख दी कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा हूँ, जैसे मैं जिंदगी से गुजर रहा हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, मैं बीच में नहीं आऊंगा, तुम्हारे दूध के अंदर मैं नहीं आऊंगा। So you have not come here in the world to be permanent, to है टिक 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 टिक, आपकी जिंदगी जारी है। Today is my 21,224th day of my life. I don't know whether I'll get 225. So टिक 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 टिक, अभी इस वक्त को आप वेस्ट मत होने दो। हम लोग सोचते हैं ऐसा करेंगे ये होगा, अच्छे कर्म करते जाओ, इसी मूवमेंट में अच्छे कर्म करते जाओ, जिंदगी हर तरीके से आपका ध्यान करेगी। एक ट्रू स्टोरी हुई थी, एक बिलियनर था, बहुत अमीर आदमी। व्हेन ही डाइड, तो उसका $10 बिलियन उसकी बीवी को मिले, विडो को मिले। शी मैरिड वन ऑफ हिज एम्प्लॉइज, जो उसके घर में आके उसकी सेवा करा करता था, जो बीमार था, और ये बहुत अच्छे उसके रिलेशनशिप थे सारे बच्चों के साथ ना। सो शी फाउंड हिम द मोस्ट नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट सिस्टम फॉर हरसेल्फ। उसने उससे शादी कर ली। ही बिकेम द ओनर ऑफ दैट कंपनी। एक दिन सोचते अपनी बीवी को बोलता है, यार आज तक मैं इतने सालों से सोच रहा था कि आई एम वर्किंग फॉर माई बॉस, अब मुझे रियलाइज हुआ कि ऑल द लाइफ माई बॉस वाज वर्किंग फॉर मी। सो यू डोंट नो। आपको आज से सिर्फ एक चीज ध्यान में रखो, इस मोमेंट में मैं क्या अच्छाई कर सकता हूँ, इस मोमेंट में कैसे मैं प्यार वाला बन सकता हूँ, इस मोमेंट में कैसे मैं अच्छे कर्म कर सकता हूँ, क्योंकि इसी मोमेंट में से नेक्स्ट मोमेंट निकलेगा। सो इफ यू आर प्लांटिंग लव इन दिस मोमेंट, you will get more loving situations in your life in future. So the third thing that you have to understand is अपने माइंड को कंटिन्यूअसली वैरायटी दीजिए और कंटिन्यूअसली गिव इट अ प्लान टू वर्क अपॉन। अपनी टू डू लिस्ट बनाइए। बिजनेस वालों के लिए सबसे इजी चीज है टू डू लिस्ट। कल मैंने सुबह क्या करना है दिमाग में मत रखिए, टू डू लिस्ट बनाइए और उसमें जब से सबसे इंपॉर्टेंट काम है सबसे पहले कीजिए, क्योंकि आपका इनबॉक्स खत्म नहीं होगा। जिस दिन मरोगे ना उस दिन भी इनबॉक्स फुल ही रहने वाला है। तो आप इनबॉक्स खत्म करने की कोशिश मत करो, मोस्ट प्रायोरिटी वर्क को पहले कर लो एंड यू विल बी एबल टू डू दैट, राइट। सो
Keeping these three things, let's conclude in the session. After this, we'll open for question answers. Let's conclude a very important thing in the whole thing that we are talking. कि the roughest seas make the toughest captains. हर एक इंसान की बोट के ऊपर समुंदर, हर एक जिंदगी बंदे की जिंदगी में तूफान तो आते ही हैं, लेकिन अगर आपकी बोट, आपका माइंड आपके कंट्रोल में है तो कितने भी तूफान आ जाएं, यू विल स्माइल आउट फ्रॉम दैट. सी फिजिकली जिंदगी आपको कभी रोक सकती है. पैंडेमिक में फिजिकली जिंदगी ने रोका, फिजिकली हम कुछ नहीं कर पाए, बट मेंटली आपको कभी भी दुनिया में कोई जगह पे कोई नहीं रोक सकता. So you have a power to use your mind every moment of your life for the betterment of yourself and society. So from next time, if you want to unlock business in any way, in a happy way, then you need to master your mind with the three things that I just said. From today, focus your mind only to direct it on what you want. उसकी फोकस सिर्फ what you want पे रखिए दिमाग की. आज से जैसे ही घर जाओ पकड़ लेना, जब आप अपनी फोकस what you don't want पे करो, एक चांटा मारो अपने आप, 10 बार मारो, या रबर बैंड लगा लो, एक प्राणायाम करके मारो, 10 बार पकड़ोगे आप अपने आप को दिन में, धीरे धीरे आदत बदल जाएगी. So once you are focusing on what you want, only that can come in your life, right? Second thing, keep yourself productively busy. जितना आप productively busy रखेंगे अपने आप को, उतना आपकी value addition होगी. So continuously ask, how can I have more value? How can I be more valuable? कौन सा फीचर मैं ऐड कर सकता हूँ ये मोबाइल में, right? And third, keep giving variety to your mind. अच्छी किताबें पढ़िए. Simplest way to give variety to your mind, read books. I read 3,000, 4,000 worth of books every month. Read books. There इतने सारे सीनियर लोगों की thought processes आपको पता चलेंगी. Continuously apply them. You see how productive you can become, how much variety you will get, and continuously have a plan. कि okay, आज मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, अब मैं जितने लोगों को प्यार दे सकता हूँ दूंगा. एक प्लान है ना, जरूरी नहीं है 10 साल बाद का हो. अभी का हम कहते हैं 10 साल के बाद मैं इससे प्यार करूँ, क्या फायदा? So you cannot do that, right? So from today keep that in mind. अगर आपने ये 3 चीजें कर ली, you will be the captain of your ship. कितने भी तूफान आ जाएं, आपकी शिप वही की वही है. So we can open for question and answers, right? And after that I need about 5 to 7 minutes to conclude this session. So please, we can open for question and answers. Any questions? Yes, please, can you give the mic there? Good evening. Very good evening. सर, बिजनेस में बहुत सारी चीज हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज हमें दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है. उस वक्त हैप्पीनेस जरा आगे पीछे हो जाती है. करेक्ट. पेमेंट नहीं आना है, माल रिटर्न होना है, करेक्ट, कारीगर छोड़ जाना है, करेक्ट, अब कैसे करें? बहुत अच्छी बात है. ये बड़ा नॉर्मल सिनेरियो भी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझनी कि हम हर एक सिचुएशन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. देखिए, हम हर एक, अगर आपके अंदर कहीं डाउट होगा, ये कोई भी बिजनेस करते हैं आप, जब उसमें डाउट होगा, पता नहीं मेरी पेमेंट आएगी कि नहीं, तथास्तु. जिंदगी सिर्फ एक वर्ड बोलती है. मेरे को 58 ईयर्स में एक भी बुरा इंसान नहीं मिला. हाउ कैन दैट बी? क्योंकि मैं देखूंगा ही नहीं उसका. कोई बेकार की काम करेगा, उसके अंदर भी मैं कोई अच्छाई ढूंढ लूंगा. So our focus first has to be on, not everybody is your customer. You choose. We teach people how to treat us. मेरे कस्टमर्स भी मुझे मतलब कॉल किए बगैर मेरे ऑफिस में नहीं आते. They know कि he may not be there, he may be busy, he'll come. ठीक है. अब पेमेंट नहीं आ रही है, ये इशू है. नेक्स्ट टाइम, पहली बार हो गया, उससे सबक सीख लो. Don't do business with a person who's like that. एथिक्स आपके अंदर वो आया, आपको 2 चीजें बताने आता है. या तो आप वैसे ही हो, वो दिमाग में एक ऑप्शन देता है जिंदगी, या तो आप ऐसे ही हो या आप बिल्कुल वैसे नहीं हो. तो एक तो तारीफ हो गई, एक अगर सच्चाई है, दोनों सच्चाइयों को ओपन होके सुनिए हर टाइम. या तो आप बिल्कुल वैसे हो, जो तथास्तु हो गई
कि आपने भी कहीं चोरी अपने साथ की है, जरूरी नहीं दूसरों के साथ। हम सबसे ज्यादा चोरियां अपने साथ करते हैं, जिंदगी याद दिलाती है। जिस दिन आपको आपकी विजन क्लियर नहीं होगी ना, उस दिन आपका वाइपर टूट जाएगा गाड़ी का। जब आपको दिख नहीं रहा होगा कि आगे कैसे धंधा करना, उसी दिन वाइपर टूटेगा। जिस दिन आप किसी को गाली दोगे, जिस दिन आप किसी को जस्ट 5 more minutes कैन वी जस्ट हैव 5 minutes more? अगर आप किसी को गाली दोगे, थोड़ी देर के बाद आपकी गाड़ी पंक्चर है, कनेक्ट करो। यू फ्लैटन समवन स्पिरिट, लाइफ फ्लैटन योर स्पिरिट। कनेक्ट करो। तो ये ऐसा अगर कोई आ रहा है, क्यों आ रहा है? 2 सवाल कि मैं ऐसा हूं, नहीं हूं, तो थैंक यू। ये दिखाने आ रहा है मैं ऐसा नहीं हूं, तो मैं और स्ट्रांग हो जाऊंगा, ऐसा नहीं बनूंगा। ऑटोमेटिकली वंस यू हैव लर्न द लेसन, जिंदगी की आदत है कि अगर एक लेसन सीख लोगे वो फिर से नहीं होगा। जैसे मैं बहुत रिलाय करता था, मैं हैप्पीनेस वाला आदमी हूँ, मैं रिलाय करता था। तो एक आध बार ऐसा हुआ कि वो सेशंस हो गए, उसके बाद पैसे नहीं आए। इट्स ओके। नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन द सेम कंपनी आस्क्ड मी टू डू, आई सेड नो, यू पुट एडवांस मनी इन माय दिस थिंग एंड वी विल डू इट फॉर यू। सिंपल। सो दोनों चीजें हमारे भले के लिए आती है। एक तो आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए आती है, और एक दिखाने के लिए आती है कि शायद इस वक्त आपको डर लग रहा है कहीं कि बिजनेस थतू नहीं, शू करवानू, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। डर से जब भी आप बिजनेस करोगे, ये सारी चीजें अट्रैक्ट करोगे। और पावर से जब करोगे, कोई ताकत नहीं है कि ऐसा आदमी आपके आसपास भी भटके। एक कड़वी चीज है बट सच्ची चीज है। जिस दिन मैं डरा हूंगा ना, उस दिन मेरे को सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी। जिस दिन आप लेट हो रहे हो, उसी दिन भैंस आके आपके गेट पे बैठ जाएगी। आपकी गाड़ी निकालने में 10 मिनट लग जाएंगे। उसी दिन आपकी, जिस दिन आपका ब्लड प्रेशर का वो टेस्ट होने वाला है रात को, उसी दिन कॉफी आपके ऊपर गिर जाएगी, आप गुस्से में चिल्ला रहे हो, ब्लड प्रेशर तक। सो अंडरस्टैंड, ऑब्जर्व लाइफ एट द स्पिरिट लेवल, ऑब्जर्व इट एट द सर्कमस्टेंस लेवल। व्हाट इज इट ट्राइंग टू टीच मी? जिंदगी मुझे क्या सिखा रही है? जिस दिन आप ज्यादा ट्रैफिक में गुस्सा खाते रहते हो, जरूर ट्रैफिक में फंसते रहोगे, जब तक आप ये रियलाइज नहीं करोगे कि आप भी तो ट्रैफिक हो, है ना? तो जब भी बिजनेस में ऐसा होता है, इट कम्स आइदर सो दैट यू डू नॉट गेट चीटेड एट अ बिगर लेवल, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो कार्मिक डेप्ट करके छोड़ दो। कोई पुराना कोई डेप्ट होगा, किसी बच्चे को मैंने बेकार में चांटा मारा होगा, जिंदगी ने आप दे दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दो। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, कंट्रीब्यूशन पे अपना दिमाग रखो। इन बिजनेस ओनली वन वर्ड विल वर्क फॉर यू ऑलवेज। कितनी रिसेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, हाउ कैन आई बी ऑफ यूज टू माई कस्टमर, हाउ कैन आई बी ऑफ मोर यूज, डजंट मीन ही अब्यूजेस मी। अब यूज और अब्यूज में ज्यादा फर्क नहीं। हाँ सर आपका 40 डेज, हाँ सर नो प्रॉब्लम, 60 डेज हो गएगा, अगली बार गएगा 60 डेज। अब उसने देख लिया आपको हिलाते हुए दुम। इफ यू आर सेइंग कि सर मेरी ये टर्म्स हैं, दिस इज माय बिजनेस टर्म, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई जो किसी के आपके टर्म्स में बिजनेस नहीं हो सकता, हो सकता है। सो इट इज अप टू यू हाउ यू फ्री। सो टीच पीपल कि आई विल नॉट टेक दिस, आई विल डू बिजनेस, दिस इज माई सर्टेन टर्म्स। आपके साथ हम मिक्स करके बेस्ट क्या कर सकते हैं। जिस दिन किसी ने गलत किया, अपने से अंदर ढूंढो पहले कि मैंने कहा ऐसा किया कि जो ऐसा इंसान मेरी जिंदगी में आ गया। जैसे अगर कोई ईगो वाला मेरी जिंदगी में एक दिन आ गया, मैंने कहा यार ये ईगो वाला मेरी जिंदगी में कैसे आ गया, दैट मीन्स मेरे में उस टाइम ईगो है। बड़ा सोच के मैंने पता लगाया, एंड आई रियलाइज यस, 2 days before I was being very egoistic with the चौकीदार। वो जिंदगी याद दिलाया, मैंने माफी मांगी, वो दिन गया, आज तक फिर से कोई ईगो वाला नहीं आया। तो ये एक थोड़ा सा ये कहने वाली बातें हैं, ये अगर इसमें वॉश आउट कर दोगे ना, आपकी जिंदगी में वॉश आउट ही रहोगे आप। फिर तो आप छम्मक छल्लो बनते रहोगे 24 घंटे। वो हेमा मालिनी की तरह तुम्हारे पैर चलेंगे, इसकी सांस चलेगी, तुम्हारे पैर चलेंगे, इसकी सांस चलेगी, वही करते रहोगे। तो ये लेकिन इसका डायलॉग सुन लो कि गब्बर के ताप से सिर्फ एक आदमी तुम्हें बचा सकता है, खुद गब्बर। तब आपको बात समझ में आ जाएगी, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन क्यों आई है, उसमें से लेसन ले लोगे, वो फिर से रिपीट नहीं होगी। 8th की क्लास आपने पेपर पास कर दिया, 9th में जाओगे कि 8th में रहोगे? वो पेपर कभी वापस नहीं आएगा सर आपके पास। बट थैंक्स फॉर आस्किंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स क्लैप फॉर सर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा सर।
Any other questions? Yes, please. गुड इवनिंग। Very good evening. Yeah. अपने कभी भी अच्छा काम करते हैं, कभी भी अच्छा काम करते हैं, अपने को लगता है अपने अच्छा किया, वी डिड वेल, दूसरे का भला हुआ, लेकिन अपने को एप्रिसिएशन नहीं मिलता उस चीज का। तो उस सिचुएशन में क्या करना है? अपने ऐसा सोचते हैं कि यार एप्रिशिएट तो होना चाहिए, मैंने कुछ अच्छा किया, दूसरे का भला किया, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरा कुछ बना नहीं, यानी जचा नहीं, तो उस चीज में अपने को हैप्पी कैसे रहना? Again, बहुत अच्छा सवाल. I am really liking the questions you are asking. This is a very important question. Again, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा. Thanks for asking it. पहली चीज आपको अप्रिसिएशन चाहिए क्यों? महात्मा होता है ना, वो जानता है वो महात्मा है, उसको किसी की तालियां नहीं चाहिए तो आप महात्मा नहीं हो. दूसरा, अगर आपने किसी का भला किया, अप्रिसिएशन मांग रहे हो, तो आप बिजनेस कर रहे हो, आप वैसे भी भला नहीं कर रहे थे, आपने अच्छाई नहीं करी, आपने अच्छाई करी ताकि आई गिव यू, अगर मैं आपको एक अभी 100 का नोट दूं और पकड़े रखूं, तो मैंने आपको दिया, आपने पकड़ के रखा, अप्रिसिएशन दे तब तेरा. आर यू गेटिंग मी? सो इट्स ह्यूमन नेचर टू बी अप्रिशिएटेड. तो एक और चीज है, अगर एक आज सेम आदमी के लिए आप बार बार करी जरूरत नहीं, अप्रिशिएट कर रहे हो, मत दो. इट्स लाइक अगर किसी को आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, वो पाइप फेंक देता है, तो अपनी मूर्खता है ना उसको पानी ब्लड देते रहने की, वो समझ लो. तो उसको दो जिसको जरूरत है. हम अपने बंदों को बदलना चाहते हैं, ये अप्रिशिएट करे, कोई ना करे, कल को कोई ना करे मुझे अप्रिशिएट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. वाई? बिकॉज मैं यहाँ पे प्यार देने आया हूँ, मैं अपना काम चोर कर चुका हूँ. अगर मैं आपको उसमें मजा नहीं आया या आपको उसका वो नहीं आया, मेरी एक ही गलती है कि मैं शायद आपको मैसेज अच्छे से दे नहीं पाया, उसमें भी आपकी गलती नहीं है. दूसरा है, इट्स अप टू यू वांट टू अप्रिशिएट और नॉट. आई नेवर केम हियर कि आप मेरे लिए तालियां बजाओ, फिर तो मैं कभी भी अपना मैसेज डिलीवर कर ही नहीं पाऊंगा कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है. उसने वहां पे उबासी ली, वो थका होगा, छोड़ो. वो इतना एक्साइटेड हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, छोड़ो. कीप डूइंग योर बिट. इसलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में फेंक. पता है क्यों कहते हैं? नहीं तो रोज जाओगे देखने मेरी नेकी का क्या हुआ. अगर कुएं में फेंक बोला था तो रोज कुएं में जाके देखते ना आप कि मेरी नेकी का क्या हुआ. इसलिए सृष्टि का नेकी का दरिया में फेंक, बिकॉज वॉट एवर यू गिव हैज टू कम बैक. मैं कंपनी में गया, वहां पे वो कहता है मेरा सुपरवाइजर सर बड़े गलत तरीके से पैसे बना रहा है, आप ऑनेस्टी के भाषण दे रहे हो और वो गलत तरीके से पैसे बना रहा है. मेरे को बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन, सिर्फ पता लगाना, उसको पूछना उसके बेटे ट्यूशन करते हैं क्या. कहता ठीक. मैं कहा तुम्हारे बच्चे? कहता बहुत इंटेलिजेंट है सर, कुछ पढ़ाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप पढ़ लेते हैं. 2 महीने बाद जब मैं गया, उसने तो सेशन अटेंड कर रखा था, बट ही केम टू नो जैसे भैया आए हैं, तो अपना लंच टाइम पे सीधा मेरे टेबल पे आया, रुका रहा, मैंने लंच किया, जब उठ के आ रहा था तो कहते जस्सी साहब आपको कैसे पता था कि उसके बच्चे ट्यूशन करते हैं. तो मैं कहा एक रूल है जिंदगी का, चोरी का धन मोरी में जाएगा. उसने चोरी करी, मोरी में जा रहा है. तुम अच्छे काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं पैसे में ही आपको आए. हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी रहे, हो सकता है आपकी फैमिली अच्छी रहे, हो सकता है आपकी पड़ोसन अच्छी आ जाए. बॉटम लाइन इज लाइफ compensates for everything. So start getting excited, start being the sower. एक सृष्टि का रूल है ना कि अगर आम डालोगे तो क्या करेला निकलेगा, अगर करेले आ रहे हैं तो क्या डाल रहे हो. हमको लगता है हम आम डाल रहे हैं, पूछो. सृष्टि का रूल तो तोड़ नहीं सकते, भगवान भी आम में से करेला नहीं निकाल सकता. राइट? तो जो डाल रहे हो वापस आएगा ही आएगा. एज यू सो सो शैल यू रीप. तो अपना काम है क्या डाल रहे हो उस पर भरोसा करो. छोड़ दो दुनिया जानती है नहीं जानती. और आज से एक ट्राई कर लो, ट्राई टू बी वेरी ऑर्डिनरी. कोई मुझे जाने ही ना जाने, कोई जाने. मेरी 5 किताबों में मैंने अपनी फोटो नहीं आनी थी. व्हाई शुड आई बी नोन. द मैसेज हैज टू बी नोन. आज मैं आपको 1000 फोटो में से मैडम क्यूरी की फोटो दिखाऊंगा, आप बता पाओगे? मतलब मैं इसे रख दूंगा, कहूंगा मैडम क्यूरी दिखाओ, बता पाओगे आप कौन सी है? तो फिर ये शक्ल का क्या करना है? कर्म कर चुकी है ना, कर्म का ध्यान करो. सो इट इज डिफिकल्ट, यू फील हर्ट,
But if you are feeling hurt, you are sacrificing, then it is not giving. जब आप दे रहे हो, आपको देने में इतना मजा आ रहा है, दूसरा कि आपको कुछ और चाहिए नहीं उसमें से। आज मैं 6,000 लोगों को बर्थडे विश करता हूँ, आपको लगता है मुझे वापस करते हैं 6,500? बट मेरे फादर ने एक बार मुझे पूछा कि पता तो लगाओ तुमको कितने करते हैं। मैं कहा ठीक है। यू नो हाउ मेनी पीपल कॉल्ड मी? 782। मेरे को जाके पूछो कि आपको 782 कॉल आए क्या बर्थडे के? 6 दिन तक मेरा बर्थडे का फोन कॉल ही चलता रहा। इट्स नॉट बिकॉज आई एम ग्रेट, इट्स बिकॉज मैंने सीड्स डाले। तो मुझे नहीं चाहिए आप सारे 6,000 मुझे कॉल बैक करो, आप ना करो। मैं आपको जब बात करूंगा, हैप्पी बर्थडे करूंगा, तो मैं भी तो खुश होऊंगा। Are you getting me? Keep being the source. कभी सूरज ने बोला है कोई मुझे ध्यान ही देता यार, सुबह या शाम में जलता रहता हूँ इन लोगों के लिए, आज तक इनने कुछ किया नहीं, कहता है। इसलिए सबसे पावरफुल रहता है। इसलिए सबसे पावरफुल रहता है। So do not look for appreciation and all. Life will take care of it. Life will appreciate you. It's not वो नर्स होती है ना, एक नर्स अपने बेड ठीक कर रही होती है, तो एक बुजुर्ग औरत वहां पे 10 साल से होती है, कहती है गॉड नोज यू डिजर्व मोर। तो बोलती है तुम इतनी अच्छी हो, गॉड नोज यू डिजर्व मोर। कहती है इफ गॉड नोज दैट्स मोर देन इनफ। जब भगवान को ही पता चल गया कि आई डिजर्व मोर, तो अपने आप करेगा। So please do not just look at your life in a money oriented aspect. From today start being a business person who wants to be of use to the world, who wants to serve. So word निकालो, पहले serve then deserve. If your product is good, if your intention is good, if your services are good, why will people not work with you? Right? So if your appreciation is not happening, don't bother. Keep doing good and keep remembering. एक जने को तो पता है ना उसने अच्छा किया, आपको पता है ना, आप आराम से सोओगे। Right? Yeah, any other questions? Yes, please. What should be the purpose of life? Like if we go, we hear business seminars, they tell to more focus on business. If we go into family seminars, they tell that you should be more doing with family health, then more focus on health. So there are so many things, but what should be the purpose? Like we are born, so what is the purpose? That's a very man question. एक इंसान ही ये सवाल पूछता है। कभी देखा है कोई घोड़े को, गधे को पूछते, पेड़ को पूछते? नहीं, इंसान को, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक बहुत गलत चीज भी कराती है। कॉन्शियसनेस आपको कीड़ा भी देती है। एक तो है डिसीजन मेकिंग चॉइस, कॉन्शियसनेस देती है, साथ साथ ये भी होता है। सी रिमेंबर, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट अ ह्यूमन बिकम, वी आर अ बीइंग, वी आर अ कांस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग। ये आदमी की सबसे बड़ी पावर भी है और सबसे बड़ी उसकी मिजरी भी है, क्योंकि इफ यू आर नॉट बीइंग, लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी, राइट? नाउ क्वेश्चन ऑफ पर्पस, यू कैन नॉट find a purpose in life. Don't try to find a purpose in life. Life is a field. You have to give a purpose to life. Life तो ग्राउंड है, उसमें जो आपने डालना डालो। अब क्या आपका पर्पस है जो दुनिया का भला करेगा? 3 एस्पेक्ट्स होते हैं पर्पस, अगर आपको रियली पता लगाना है। विच इज योर पैशनेट पर्पस दैट विल बी ऑफ यूज टू द वर्ल्ड। 1, you love doing that. You love doing that. आपको बहुत मजा आता है वो करने में, एफर्टलेसली कर लेते हो, वो आपका इनर एक रीजन है जिसकी वजह से जिंदगी ने आपको पैदा किया। दूसरी चीज, वो आप उसमें बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड एट इट, देन यू विल एंजॉय योर स्ट्रेंथ्स, राइट? एंड थर्ड, you people are ready to pay you for it. They are so happy with the value you are adding through that. तो जैसे अब मेरी वाइफ को मैं एक दिन मुझे यही सवाल पूछा कि भाई मेरा क्या पर्पस है, आप तो इतने बड़े वो करते हो। तो मैंने कहा तेरा पर्पस मेरे हिसाब से कुकिंग है। शी इज एक्सीलेंट इन कुकिंग, वन ऑफ द बेस्ट कुक्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड जब वो कर रही होती है ऐसे, मतलब टाइम डजंट एग्जिस्ट, गर्मी डजंट एग्जिस्ट, शी जस्ट कीप्स ऑन गोइंग। द सेकंड थिंग आई सेड, यू आर वेरी गुड एट इट। वो 24 घंटे नए नए रेसिपीज ट्राई करेगी, शी इज गुड एट इट। थर्ड,
शी इज एडिंग वैल्यू टू सो मेनी पीपल शी इज सर्विंग इन द हाउस. इतने लोग जो गेस्ट आते हैं, जो भी आता है, अरे यार टू गुड. तो क्या है, पैसे नहीं कमाने, चाहे अभी अपनी वो चैनल बना के पैसे कमा सकते हो उससे. पीपल विल पे फॉर इट. So you have to find, don't try to find a purpose in life. Give a purpose to life. आप किस चीज में अच्छे हो, क्या चीज आपकी स्ट्रेंथ है जो करने में मजा आता है आपको, और उसको वैल्यू ऐड करके मैं दुनिया में कैसे पेश कर सकता हूँ. जैसे आई जो स्टार्टेड विद मर्चेंट नेवी, आई डिडंट हैव अ क्लू क्या है. देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट आई गेट अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ पीपल. मुझे लोगों को मिलने का बहुत मजा आता है. सो स्लोली आई स्टार्टेड टेकिंग दिस थिंग कि लेट मी स्पीक ऑन स्टेजेस. तो छोटे छोटे सेमिनार देने चालू किए. I came to know that I am good at it. सेकेंड चीज हो गई. अब फिर वैल्यू ऐड क्या करना है, पैसे आदमी तब देगा जब उसकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे. उसकी जब आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी तभी वो पैसे देगा ना. तो दैट्स द थ्री थिंग्स. सो आप अपना पर्पस डिस्कवर करने की कोशिश मतलब जिंदगी से पर्पस कांट बी गिवन टू यू बाय लाइफ. यू कैन गिव पर्पस टू लाइफ, अदरवाइज लाइफ इज पर्पसलेस. You got the answer. Right. Yeah. Any more questions or can we conclude? મિત્રો છેલ્લો ક્વેશ્ચન કોઈને કેવું પૂછવો હોય તો પ્લીઝ. मैं पूछूं एक और? हाँ please. अपने बिजनेस काम करते हैं, जो भी काम करते हैं अच्छी तरह करते हैं. अभी कभी घर पे कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई बीमार हुआ, या कुछ किसी को लगा, कुछ भी हुआ ऐसा कुछ, तो इन दैट केस अपना माइंड वहाँ पे भी फोकस जाएगा वहाँ पे कि उसका कैसा रहेगा, उसकी तबीयत कैसी होगी, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ. इन दैट केस हैप्पीनेस अपने को कैसे क्रिएट करनी. See, happiness is whenever you are being selflessly contributing, you will be happy. Instead of saying अब मैं यहाँ हूँ, अब जब जो कुछ नहीं कर सकते किसी के बारे में, आज मैं सोमालिया में किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, बट इधर मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ, right? So if you are, I'm not saying you have happiness doesn't mean you are every time, no. अब मेरा कोई दोस्त के फादर गुजरते हैं, जान निकलती है मेरी, क्यों किसी ने बोला है तब हैप्पी रहो, बट आई डोंट स्टे अनहैप्पी. दैट्स द डिफरेंस. पहले होता है दुख, यार अंकल चले गए यार. मेरे अपने पेरेंट्स, आई लॉस्ट बोथ माय पेरेंट्स इन अ स्पैन ऑफ 3 days. मुझे पता है लूजिंग क्या होती है, राइट? बट द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि थैंक यू भगवान, यू गिफ्टेड मी फॉर सो मेनी इयर्स, सच ब्यूटीफुल पीपल, दैट्स द बेस्ट वे टू टर्न अराउंड. जो मैंने कहा ना, वो डायरेक्शन बदलो, नहीं तो वो दिल्ली पूरी दुनिया घूम के आओगे सोल्यूशन के लिए. तो जब कोई बीमार है, obviously your love is going to take care of her, and you can't be happy when someone is in the hospital or something. Why can you? So I'm not saying happy has to be ha 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 ha. That's not happiness. Be with whatever is happening. मैंने पहली चीज बोली थी. Happiness is the ability to be with whatever is happening. सबसे पहले एक्सेप्ट करो. जब तक आप रेजिस्ट करोगे आप अनहैप्पी हो. हाँ ये हो गया, वो बीमार है, अब हाउ कैन आई बी ऑफ यूज, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? ओके, आई एम स्टक इन द बिजनेस, आई कैन नॉट गो. क्या कर सकता हूँ? यहाँ से लविंग थॉट्स तो भेज सकता हूँ, गॉड ब्लेस यू, हो गया. हम पहाड़ तोड़ के लाने की क्यों बातें करते हैं हर टाइम, है ना? सो सिर्फ अच्छी दुआ दे छोड़ दो उसके लिए. अगर कुछ जेन्युइनली नहीं जा सकते, अच्छी दुआ छोड़ दो कि सृष्टि तुझे मालूम है तेरी औलाद है, तू जानते. मैंने आज तक कभी किसी को प्रेयर नहीं करी ये ठीक हो जाए. क्यों भैया? सृष्टि को पता है तुम्हारे से ज़्यादा तुम उसके साथ क्या करना है. जब मेरे पेरेंट्स सिक थे, आई नेवर वंस सेड कि यार ये ठीक हो जाए. व्हाई शुड आई? सृष्टि की औलाद है, वो ज़्यादा जानती है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ. हाउ कैन आई बी ऑफ यूज इन दैट सिचुएशन? वो मेरा इलाका है, बस इधर तक रहो. हम क्या है वो भी नहीं करते, वहां दुखी होते हैं. I hope I'm giving you clarity. नहीं अभी समझ में आया? बेबस होने से कुछ नहीं होता. बेबस इज अ डायरेक्ट साइन कि आप विक्टिम हो, और विक्टिम कभी खुश नहीं हो सकता. बेबस आदमी कभी कैसे खुश हो सकता है, राइट? ओके, सो कैन आई कंक्लूड? आई नीड 5 minutes टू कंक्लूड. सो इस सेशन में हमने
क्या बेसिकली समझा, इफ यू वांट टू अनलॉक, once you unlock yourself in the mind, you will unlock happiness in any business, in any situation in life. मैंने आपको 3 तरीके बताए जिससे आप अपने माइंड को मास्टर करके अपनी हैप्पीनेस एवरी सिचुएशन में अनलॉक कर सकते हो. आई हैव शोन यू द डायरेक्शन, बट द एक्शन हैज टू बी टेकन बाय यू. You can either take out the maximum from this session or you can keep blaming the world and do nothing. वो होता है ना, वो लेडी आके अपने हस्बैंड को बोलती, जी आपने सिलेंडर ठीक से नहीं लगाया, दूध 2 बार फट चुका है. You see? So if you want to keep blaming, nobody can help you. But if you have decided, so from today start taking charge. कल से सुबह ये करके देखो, सिर्फ शीशे में जाके वो जो मैंने बात बोली, जाके शीशे में जाके जेन्युइनली देखो और कहो, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, आज मैं इतना इतना प्यार भर दूंगा, तू खुश होगी, तूने मुझे जन्म दिया है. उसके बाद आपका बैड डे जा ही नहीं सकता. करके देखो. और जब भी बहुत डाउन हो, कुछ नहीं याद आए, तो ये मुकद्दर का सिकंदर का गाना गा लेना. जो जानता है आज साथ में गाए, जो नहीं जानता पुट द पावर ऑफ योर क्लैप्स एंड लिसन टू द लिरिक्स. ठीक है, जो जानता है साथ में गाए, मुकद्दर का सिकंदर का गाना, लिरिक्स पे ध्यान करना, ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं. क्योंकि हम लोग ईगो की गेम खेल रहे हैं, हमको प्यार की गेम खेलनी है. और जिस दिन प्यार की गेम खेल ली, सारी ईगो साइड पे, फ्रॉम मी यू विल बिकम वी. और जब सारी दुनिया ही अपनी है, तो फिर कहाँ आपको खोखलापन महसूस होगा. राइट? तो ये गाना जो जानता है साथ में गाए, जो नहीं जानता पुट द पावर ऑफ योर क्लैप एंड लिसन टू द लिरिक्स. शुरू करें. वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां. जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का जसिंदर जाने मन कहलाएगा. रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा. वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा. Thank Thank you you for sir. listening to me with so much love. Thank you. Thank you Jesse sir. Please take your seat please. મિત્રો, દિલ ગાર્ડન થઈ ગયું? તો એક જોરદાર તાળીઓનો ગડગડાટ કોઈને વધારી દઈએ. આપણે પ્રોગ્રામના અંત તરફ જઈ રહ્યા છીએ. હવે હું ટ્રેઝરર શ્રી મૃણાલભાઈ શુક્લાને આભાર વિધિ કરવા માટે આમંત્રણ કરું છું. No words to express for last almost 86 minutes. Wonderful presentation. पूरे दिन में से कुछ समय आनंद का मिल जाए तो दिल बाग बाग हो जाए. और आखिर में जो मुकद्दर का सिकंदर, बहुत बढ़िया. आपकी बहुत सारी बातें जो वैसे देखा जाए तो स्ट्रेसफुल कॉम्पिटिटिव, जैसे बिजनेस का जो हमारा तो काम है बिजनेस वाला, तो उसमें काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है. सवालात से भी हमको ये पता चलता है कि भाई फैमिली को ले लो, बिजनेस को ले लो, लेकिन स्ट्रेस तो रहता है. तो इनमें से आपने जो प्रैक्टिकल तरीके दिखाए हैं, वी मस्ट अप्रिशिएट. और आपने मुकद्दर का सिकंदर का गाना जब लोगों के साथ में गाया तो मुझे एक गाना बहुत बढ़िया याद आ गया, साहिर लुधियानवी साहब का. और देवानंद साहब की सेंटिनरी चल रही है, सेंचुरी इनकी बर्थ, तो उनका भी एक बहुत बढ़िया गाना. सुबह में भी हम देवानंद की बात कर रहे थे. बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था,
बर्बादियों का जश्न मनाता चला, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला। आपकी बातों में ये बातें हैं। लिव इन नाउ। पिछला क्या गुजर गया, आने वाला क्या गुजरेगा उसकी चिंता मत करो। लिव इन नाउ। बहुत बढ़िया, एक जोरदार तालियों से आपके हमारे स्पीकर जस्ट विन, ये भी बहुत बढ़िया बात है। जस्ट विन, वाई जस्ट विन, ऑलवेज विन। आपको सुन के ऐसा लगता है। और एक बढ़िया बात है आपकी इंट्रोडक्शन में जो कही गई, ऑलवेज एंड इन ऑलवेज। बहुत सारी बातें, हम तो ट्रेनिंग से चिराग भाई जुड़े हुए हैं, फिर भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें आज जानने को मिली है। वी अप्रिशिएट इट। आपके हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। द सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करीबन साल में 300 सेमिनार तो कम से कम करते हैं, लेकिन इनमें से चंद गुलदस्ते ऐसे हैं जो हमेशा हमारे लिए फ्रेश होते हैं, जैसे कि आज का कार्यक्रम है। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ये आइडिया कहाँ से आते हैं? आनो भद्रहा कर्तव्यो यंतु। आइडियाज दुनिया के चारों दिशाओं से आते हैं और एक पावरफुल दिशा जो है वो हमारे संजय पंजाबी साहब हैं, जिनको हम SAN और पंजाबी का PAN सांपन कहते हैं, या हम इन्हें ज्ञानी पुरुष कहते हैं। एक जोरदार ताली। ये आज की जो, और जैसे मैंने कहा कि भाई आनो भद्रहा कर्तव्यो यंतु, आपको बढ़िया आइडिया कोने कोने से मिल सकता है, लेकिन वो कोना आपने भी कहा कि वो आपको वो स्मेल करना पड़ता है, आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए। साथ के साथ संजय पंजाबी जी ट्रैवल कर रहे थे कश्मीर के लिए, और उनका उनसे तब तक तो कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन उनकी जानकारी उनके साथ बनी और इन्होंने ये मौका ले लिया, तब जाके आज हम आपके सामने हैं। थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर संजय। हमारे दूसरे ग्रुप चेयरमैन शैलेश देसाई जी, जिन्होंने बढ़िया सा मास्टर ऑफ सेरेमनी हमारे सामने किया, और ये प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप इनकी कमिटी के अंदर आता है, तो ये बढ़िया प्रोग्राम से आपकी शुरुआत, और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हमें मिलते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच शैलेश जी। एंड ऑन बिहाफ ऑफ द सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मैं हमारे दोनों जो पूरे साल के हमारे जो मीडिया पार्टनर्स हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है पूरे साल के लिए, ये दोनों का भी मैं यहाँ पे शुक्रगुजार रहूँगा। सिंगी फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड कलर टेक्स वर्ल्ड क्लास डाइस्टफ कंपनी, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। हम आप सबके आज की बारिश के दिन में, और आप बाजू में से तो नहीं आए, वो तो हमको पता है, क्योंकि हम सासाना में बैठे हैं। हमारे यहाँ बार बार ये बहस होती है कि प्रोग्राम समृद्धि में किया जाए कि यहाँ किया जाए, लेकिन ये वंडरफुल एनवायरनमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया है, तो हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ तक आएँ, और बहुत कुछ चाहते हैं जो आने वाले समय में हम इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। लेकिन ये बारिश के मौसम में भी आप यहाँ तक आए हैं, तो आप सबके भी हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो वेरी मच, एंड थैंक्स टू आवर टीम, सपोर्ट फ्रॉम आवर स्टाफ, तन्मय पवार भाई, एंड हमारे जो साथी हैं चेतन भाई हैं हमारे, उन सबका भी हम आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच।